what are the right questions to ask to yourself before committing to a partner? जिसने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं देखे, सोसाइटी के अच्छे नहीं देखे, कजन्स के अच्छे नहीं देखे, अपने आसपास के लोगों के अच्छे नहीं देखे, कैसे पॉसिबल है उसके लिए ये समझना कि रिलेशनशिप हेल्दी एग्जिस्ट भी करते हैं लाइफ में? Do you think people are actually falling in love with a person, or they have actually fallen in love with the image that they have created of that specific person in their mind? इमोशंस के लिए बंदा चाहिए, और बंदा ऐसा चाहिए जो जज ना करे, बंदा ऐसा चाहिए जो पलट के जवाब ना दे, बंदा ऐसा चाहिए जो इमोशनल अवेलेबल रहे, बंदा ऐसा चाहिए जो वक्त दे. बट व्हेन इट कम्स टू AI, इंस्टेंट रिप्लाईज, नो जजमेंट, इमोशनली अवेलेबल, एंड इट्स योर सेफ स्पेस. एंड मैम आपकी सारी बातों से अग्री करेगा 100%. मैं कहा ना, पलट के जवाब नहीं दे रही, ये बताएगा नहीं ना आप गलत हो. People don't want a relationship. People just want someone to witness their loneliness. वेरी ट्रू. How lonely they are in their life. झगड़ा हमेशा इस बात का होता है कि तू सही मैं गलत, या मैं सही तू गलत. झगड़ा हमेशा इस बात पे होना चाहिए क्या सही क्या गलत. इट शुड नॉट बी लाइक कौन सही और कौन गलत. While you talk to a lot of clients, do you feel that women are actually more into the feminine energy once they realize that the partner is earning more than them? Most of the time female manipulate and try to manipulate the partner who's emotionally strong because they just want to take that confirmation and कि हाँ ये है. I think शायद आपके पास आज पैसा नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को बिलीव करवा सकते हो दैट आने वाले 3, 4, 5 साल में होगा, इट्स अ गेम चेंजर. रील तो आपको देखनी ही नहीं चाहिए. रीजन बीइंग, आप एक रील देखते हो, आप हाई होते हो, और दूसरी ही रील आपको डिप्रेशन की दिखती है. तीसरी रील आपको रिलेशनशिप टूटे हुए की दिखती है. चौथी रील आपको फिटनेस फ्रीक की दिखती है. तो आपके इमोशंस हर 30 सेकंड की रील पे चेंज हो रहे हैं, तो आप रुकोगे कहाँ? Are we actually trying hard to build a better relationship because that contributes to building a successful life? जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बेसिकली एक तो वो कंट्रोल नहीं करती, वो फ्लो करती है, वो एक्सपीरियंस करती है, वो सरेंडर करती है, वो ट्रस्ट करती है. मेल के साथ दिल टेक एक्शन, सो फीमेल्स मैनिफेस्ट मोर, मेल टेक एक्शन मोर. ही इज एन एक्शन ओरिएंटेड, ही इज अ प्रोवाइडर. हमारी करंट ह्यूमन फॉर्म के अंदर we have certain ambitions, yes, certain goals that we want this specific partner or this certain kind of partner, but that doesn't align with that spiritual wealth. Then what to do? Whenever I imagine a successful life, I really feel कि उसके अंदर ना मेरे लिए 3 पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एक करियर, एक मेरी हेल्थ और एक रिलेशनशिप्स. आई फील मेरा सारा फोकस रहता है बिल्डिंग माई करियर, एंड व्हेन आई इमेजिन अ सक्सेसफुल लाइफ उसके अंदर ये 2 पैरामीटर भी है. हेल्थ के ऊपर भी आई एम ऑल्सो फोकसिंग, बट आई डोंट गेट that much content and that much conversations about building a successful relationship which contributes to a successful life. That is why I actually wanted to talk to you. ठीक है, welcome the podcast ma'am. Thank you so much. Thank you man. Thank you. आप बहुत सारे clients से मिलते हो. I think before creating content, you were into this industry and you were consulting a lot of clients. Yes. With their relationships. Yes. My first question to you would be, do you exactly think that are we actually trying hard to build a better relationship because that contributes to building a successful life? It depends person to person. That if somebody is taking care of the relationship की okay मुझे ये भी संभालना है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा. But if at one point if somebody is 100% focused on career, on not understanding relationship and not giving time to relationship, then that person will be here and there. वो हो सकता है सक्सेस आ जाएगी, करियर भी आ जाएगा, लेकिन फिर एक पॉइंट पे लगेगा कि अकेला खड़ा है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है. But what I suggest is what I learned in my life is, and what I really mean is कि लाइफ में रिलेशनशिप भी उतने ही वैल्यू करते हैं जितना करियर. एंड वट आई नो एंड आई ट्रस्टेड ऑन इट, एंड लाइक मैं इसे डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि जिस इंसान के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं वो और भी जल्दी सक्सेसफुल होता है, वो और भी जल्दी करियर में आगे जाता है, बिकॉज वो मेंटली सॉर्टेड है,
उसके पास कोई है अपना जिसे वो घर आके बात कर सकता है, अपनी बात बता सकता है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आई एम नॉट सेइंग जस्ट पेरेंट्स. I'm talking about it can be a spouse, it can be parents, it can be grandparents, it can be friend, it can be anybody. Right. जिसके पास अच्छे रिश्ते हैं वो इस दुनिया का सबसे धनी आदमी है, और जो रिश्तों को साथ लेके चलता है वो और भी जल्दी सक्सेसफुल होता है. सो आई ऑलवेज टेक दिस एग्जाम्पल. वन ऑफ द एग्जाम्पल लाइक वी ऑल नो अबाउट इट, दैट इज अंबानीज फैमिली. राइट. वी ऑल नो देम. मतलब वो करियर के इस पड़ाव पे सक्सेस के इस लैडर पे वो सबसे टॉप पे मोस्ट ऑफ द थिंग में पहुंच चुके हैं. बट स्टिल आपने देखा होगा वेन एवर डू दे आर डूइंग एनी सेरेमनीज और दे आर शादी हो रही है या घर की पूजा हो रही है या बिजनेस कोई स्टार्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, they always take care of they always take their family along. उनके साथ हमेशा उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके डॉटर इन लॉ सब कुछ खड़े होते हैं. right. That is very important. That makes you more stronger. तो हमें कई बार लगता है कि रिलेशनशिप को हम साइड रख के वी आर लिंक करियर. बट अगर आप रिलेशनशिप को सॉर्ट करके भी करियर में आगे जा सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट. ये पॉसिबिलिटी है. तो करियर करना है आप करिए. आप जब तक रिलेशनशिप में सॉर्टेड रहेंगे आप करियर में उतने ही हाई जाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, मैं आप जो बात कर रहे थे ना कि जिसके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो करियर में भी उतना ही तेज़ी से ग्रो करता है. yes. I was actually working on this podcast yesterday, preparing questions and thinking about what do I exactly have to ask you. Then I actually thought about this thing कि all I need in my life with my relationships are people who can just tell me, who believe in me and they can get the best out of me. Because उनकी सिर्फ ये assurance ना कि you will be able to do it and if not you then who. सिर्फ इतना कह देना अभी ना आपको इतना सॉर्टेड और इतना काम फील कराता है दैट you're like everything is done. प्रॉब्लम शायद हमें खुद ही सॉल्व करनी है बट इट मेक्स अस फील like amazing कि यार ये काम तो हो ही जाएगा. yes 100% I completely agree with you Aman, because ये आप सोचो ना, ये दुनिया की कितनी बड़ी पावर है कि कोई एक है इस दुनिया में जो आपको कह रहा है तू बढ़ मैं हूँ, Exactly. तू कर मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ साथ. गिरेंगे लड़ेंगे मरेंगे कोई बात नहीं बट साथ में खड़े. दैट्स वेरी पावरफुल. फिर आपको लगता है कि अब देखो तो आपकी जो स्पीड है वो XXX स्पीड हो जाती है, 10x स्पीड हो जाती है आपके लाइफ में ग्रो करने की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं है, आप में फितूर हो सकता है सक्सेसफुल होने का, सब कुछ होने का, लेकिन आपकी वो जो मैंने कहा ना सक्सेस विल मल्टीप्लाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब हमारा पार्टनर होता है रिलेशनशिप में या हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्पाउस होता है, कोई भी होता है, इनका ये कह देना कि हम साथ खड़े हैं, इट्स लाइक अनदर बूस्ट विच यू जस्ट हैव शेयर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं. हमारे रिलेशनशिप हमें डटे रहना सिखाते हैं. हमारे रिलेशनशिप सिखाते हैं रेस्ट कर ले ज़रूरी है लेकिन क्विट मत करियो. हमारे रिलेशनशिप सिखाते हैं कि चैलेंजेस आएगा मिलके फेस करेंगे, और चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं. तो रिलेशनशिप सिर्फ आगे बढ़ना नहीं सिखाते, रिलेशनशिप ये भी सिखाते हैं कि अगर सेटबैक आया इट्स ओके, कम बैक वापस से आएगा. Because it's very important to understand, which I learned from my parents and my partner, कि कहते हैं ना वक्त का पहिया घूमता है, जो ऊपर है वो नीचे जरूर आएगा. जो नीचे है जब वो नीचे होगा तो तकलीफ होगी, लेकिन जब वो ऊपर होगा तो वो एंजॉय करेगा. लेकिन समझने की बात ये है कि ऊपर वाला भी नीचे आएगा और नीचे वाला भी ऊपर आएगा. नीचे जब तकलीफ होगी उस तकलीफ में आप कब तक रहोगे और कितना जल्दी बाहर निकलोगे, ये आप पे और आपके रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करता है. बिकॉज दे आर द पीपल हु विल टेल यू इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा, थोड़ा सा दर्द है, थोड़े दिन की बात है, जल्दी निकलते हैं. So, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट मैम. एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट यार कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा लगता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन हैव अ पिक्चर इन माइंड कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, what a healthy relationship actually looks like. And you also have a certain background in manifestation, law of attraction, right? Do you think that if we have not seen a healthy relationship, is it possible that we can actually manifest that healthy relationship for us? Oh wow, that's a beautiful question. I mean, और ये बहुत लोगों के दिमाग में होगा because
आज की तारीख में बहुत लोगों के साथ ये है, स्पेशली द जेनजीज, जिन्होंने रिलेशनशिप अच्छे देखे ही नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो आज की तारीख में रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है और सिचुएशनशिप में जी रहे हैं. द थिंग इज दैट ये बहुत लोगों का सवाल होगा कि जिसने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं देखे, सोसाइटी के अच्छे नहीं देखे, कजन्स के अच्छे नहीं देखे, अपने आसपास के लोगों के अच्छे नहीं देखे, कैसे पॉसिबल है उसके लिए ये समझना कि रिलेशनशिप हेल्दी एग्जिस्ट भी करते हैं लाइफ में, क्योंकि मैंने तो देखे नहीं किसी के भी. हियर आई जस्ट वॉन्ट टू से इज, यहाँ अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि ये पॉसिबल है. रीजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे फील करो, आप उसकी वाइब्रेशंस हाई करो, आप उसको फील करो कि वो आपके पास है. आप फील करो जब आपके पास होगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे. यू शुड फील बिफोर गेटिंग इट, ये कहता है मैनिफेस्टेशन. सिमिलरली गोज विद पार्टनर. अगर आपके पास नहीं है, यू शुड फील कि कैसा चाहिए, यू शुड फील कि होगा तो कैसी सेंसेशंस होंगी, कैसे हम बात करेंगे, क्या बटरफ्लाइज होंगी पेट में, और दैट पर्सन इज स्माइलिंग. यू डोंट नो द फेस, बट स्टिल यू आर इमेजिनिंग दैट पर्सन विल स्माइलिंग. अब रीजन, जितनी भी चीजें आज की तारीख में मैनिफेस्टेशन को बिलीव करके लोग कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करके लोग जितनी भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उनके पास है? आंसर इज नो. तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लग्जरी ये, लग्जरी वो, अच्छा पॉडकास्ट स्टूडियो, एवरीथिंग जो नहीं है बेसिकली, या जो सोसाइटी के पैरामीटर पे बड़ा है, दे वांट टू मैनिफेस्ट दैट. सो वॉट एवर दे आर मैनिफेस्टिंग दे डोंट हैव राइट नाउ. करेक्ट है. सिमिलरली गो विद द रिलेशनशिप, दे डोंट हैव राइट नाउ, दे हैव नॉट सीन कि ऐसा है. बट पैरेलली अगर एक इंसान एक गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, वो सबके पास नहीं है बट किसी के पास तो है. सिमिलरली रिलेशनशिप, खराब देखे हैं उसने बट अच्छे भी तो किसी के पास हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं बॉस. अब मुझे अपने लिए करना है, तो आई रियली वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, आई रियली वॉन्ट टू फील दैट पर्सन इन माई हेड, इन माई बॉडी. आई नीड टू फील दोज वाइब्रेशंस कि ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है. इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट चेंज करना. और लाइफ में आई बिलीव हर चीज का ब्लूप्रिंट चेंज किया जा सकता है. यू बीट हेल्थ, यू बीट मनी, यू बीट रिलेशनशिप, आप किसी की भी बात करो, वो ब्लूप्रिंट चेंज किया जा सकता है. इफ समबडी इज सेइंग टुडे दैट आई डोंट हैव मनी, और हमने तो यही सुना है पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? राइट. पैसों से दोस्ती खराब है, पैसे वालों से दोस्ती खराब है, दूर रहना अच्छे नहीं होते, बड़े बाप की औलाद है. ये टैगलाइंस हमने बहुत सुनी है, राइट. बट और हम कैसे कमाएंगे? मेरे खानदान में कभी किसी ने इतना पैसा नहीं देखा. बट इज दिस पॉसिबल टू चेंज दैट ब्लूप्रिंट? 100% it's possible to change that blueprint. We can change that, and that is the reason आज की तारीख में आपने देखा होगा IAS कौन बन रहा है, चाहे वो एक ऑटो वाले का बच्चा है IAS ऑफिसर बन गया, एक रिक्शा चलाता है, उसके बेटे ने कोई बहुत अच्छा एग्जाम कर लिया. वाई? बिकॉज उन्होंने अपनी रियलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि जो नहीं हुआ, मेरे खानदान में कोई IAS ऑफिसर नहीं बना तो मैं भी नहीं बन सकता. सो दे चेंज देयर ब्लूप्रिंट. सिमिलरली गोज विद रिलेशनशिप. अगर उन्होंने नहीं हेल्दी देखा, they can see that. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी देखा. मेरे जो रिलेशनशिप की डेफिनेशन बनी, दैट इज फ्रॉम माई पेरेंट्स ओनली. दे डिड लाइक लव मैरिज, बैचमेट्स, नानू को मनाया, दादी दादू को मनाया, सब कुछ किया. बट देर आर मैनी थिंग्स, आई शुड नॉट से मैनी थिंग्स, देर आर फ्यू थिंग्स विच आई रियली डोंट वांटेड कि आई नेवर वांटेड कि मेरे रिलेशनशिप में, जो कि आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में थी. हेल्दी था, बहुत प्यारा था, बट देयर वर फ्यू थिंग्स जो मुझे अपने रिलेशनशिप में नहीं चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे माई मदर वॉज अ वर्किंग फीमेल, ठीक है, तो उन्होंने काम किया, शी यूज्ड टू बी किड्स, शी वॉज प्राइमरी टीचर, सब कुछ किया, बट हमारे बाद छोड़ दिया. लेकिन वो छोड़ने के बाद का जो उनका टैंजेंट था, मेंटल प्रेशर था, सिर्फ बच्चों में रह जाना, उसके बाद देयर वाज अ टाइम कि हमने कोशिश की कि वो वापस से जाएं, बट शी वाज नॉट रेडी, शी वाज नॉट that confident enough to go back to school. She was wonderful teacher. So I was like, नहीं, जब मेरा होगा I'll be a working female, मैं काम करूँगी, and he'll be happy with me. He'll be like, he'll not कि मैं allow कर रहा हूँ, he'll like हाँ कर ना, ठीक है कर लो, and I'll not ask him कि मुझे काम करना है. I said मुझे काम करना है. तो there were few things which I really wanted कि मैंने अपने parents के relationship में नहीं देखी, but मुझे चाहिए थी. So yes, if you don't have seen healthy relationship, you can still manifest a healthy partner. Yes, you can do that.
आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट चेंज करने की ज़रूरत है, आपको वो फील करने की ज़रूरत है जो आपको चाहिए, आप 100% मैनिफेस्ट कर सकते हो. And if you have someone in your mind and you feel that particular person can be your possible future husband or wife, what are the right questions to ask to yourself before committing to a partner? Okay, that's again a very good question, and I must say to all generation right now, to everybody who's getting married or about to getting married or engaged or whatever, it's very important to ask few questions before marriage, rather than बाद में वो what do you call कलेश होता है और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और ईगो क्लैशेस होते हैं. उससे पहले ही आप उस इंसान से समझिए, एंड बीइंग अ मैच्योर पर्सन यू कैन आस्क. सो फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन आस्क इज वी कैन आस्क अबाउट दैट हाउ वी हैंडल फाइनेंसेस, हाउ यू हैंडल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड विद योर पार्टनर कि हाउ वी हैंडल फाइनेंसेस, हाउ यू हैंडल फाइनेंसेस. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनेंसेस को लेके. लाइक समवन बिलीव्स इन सेविंग एंड समवन इट्स लाइक उसे लाइफस्टाइल पे खर्च करना है, उसे आज जीना है. Right. वो कल की चिंता नहीं करता. Right, right. रवि गुप्ता का एक वो बड़ा फेमस हुआ था ना, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी फटी है परसों को लेकर. तो बेसिकली देयर आर पीपल हु लाइक कमाना है, दे आर रियली वर्किंग हार्ड, बट दे रियली वांट टू स्पेंड मनी ऑन लग्जरी, ऑन लाइफस्टाइल. बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल दे वांट टू सेव देयर मनी. तो फाइनेंसेस को लेके आपका क्या है, स्पेशली इफ बोथ आर वर्किंग, देन हाउ विल मैनेज इट, कि कैसे करेंगे. जॉइंट अकाउंट होगा, सेपरेट अकाउंट होगा, घर के खर्चे अलग होंगे, सेविंग्स अलग होंगी, आप कैसे लेते हो. देन टॉक अबाउट लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल को लेके आप बात कर सकते हो, कैसा पसंद है करियर वाइज, व्हाट यू थिंक अबाउट करियर. कैसा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत अच्छा एक ऑफर आया बाहर और आपको एक सिटी या कंट्री मूव करना है, तो हाउ विल यू हैंडल दिस. यू विल गेट योर पार्टनर अलॉन्ग, या पार्टनर पेरेंट्स की देखरेख करेगा, आप अकेले काम करोगे. सिंपल, यू कैन आस्क, लाइक यू कैन आस्क अबाउट दैट what's your preference, you are more into spiritual or you are more into religion, because how we will handle the culture है ना, जो हमारे वैल्यूज, द कॉन्वर्सेशन, हमारी जो वैल्यूज होंगे, जो कल्चर होंगे. अब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ 7 फेरे होंगे, हमारे यहाँ रात के टाइम ये होगा, हमारे यहाँ दिन के टाइम ये होता है, हमारे यहाँ इतनी मिलनी आती है. Of course. Right? So these conversations are very important. Then शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, विद पेरेंट्स रहेंगे या अलग से रहेंगे, हम फेस्टिवल्स कैसे मनाएंगे, करेक्ट. और व्हाट अबाउट योर टेक ऑन हेल्थ, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप कैसे हेल्थ का ध्यान रखते हो, या यू आर फिटनेस फ्रीक, और कैसे हम चीज़ों को वो करेंगे. हम हील्ड हैं या पास वूंड्स में हैं, राइट. सो आज भी हम, सो यू रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस, दैट आज भी हम एक्स के साथ अटके हुए हैं, पास्ट बैगेजेस के साथ अटके हुए हैं, और वी आर हील्ड टू हम इस रिलेशनशिप को अनदर लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं. तो फ्यू थिंग्स, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड, 2 अलग दुनिया हैं, एक होने जा रही हैं. 2 लोग एक नाव पे सवार होने जा रहे हैं, दोनों को ये पता होना चाहिए कि नाव चलती कैसे है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Right. और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट कैनॉट बी लाइक, जैसे आज की तारीख में क्या होता है, या हमेशा से रहा है, दैट फीमेल्स आर 1 स्टेप बैक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. थोड़ा सा, एंड इट्स नॉट कि उनको आता नहीं है, इट्स लाइक इंटरेस्ट नहीं है, राइट. सिंपल. सो लेट्स से कुकिंग में उनका इंटरेस्ट है, कुकिंग में मेल का इंटरेस्ट कम है, हालांकि वी हैव शेफ्स जो मेल ही हैं. बट अगर मैं जनरल माइंडसेट की बात करूं या मैं मिडिल क्लास की बात करूं, तो मोर ओवर आप देखोगे फीमेल्स आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस. घर देख रहे हैं, किचन क्या होगा, पर्दे क्या होंगे, जिसमें मेल का इंटरेस्ट थोड़ा कम है. सिमिलरली फाइनेंस में उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि वो भी फाइनेंसिस को लेके बात करें. और अगर वो नहीं आता उन्हें, तो इट्स पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बिठा के समझाए. टाइम ही तो लेंगी समझने में, इट्स ओके, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. फाइनेंसिस के बारे में बात करना, हम कैसे ग्रो करेंगे, हेल्थ का ध्यान कैसे करेंगे, हाउ यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, क्या तरीका है ना, पेरेंट्स के बीच में. और जब ऐसे होगा तो कैसे होगा, व्हाट यू प्रेफर कम्युनिकेशन or you prefer to go in silence, right. There is small conversation and maturity के साथ. And the most important part, जब आप ये conversation कर रहे हैं, आपको ये conversation बिना judgment के करनी है. That's very important, that whatever that it's person, very hard. Yeah. But whatever that person will answer, because that again, अब जो भी आपने बोला और जो भी मैंने सवाल किया, या जो भी आपने सवाल किया और मैंने जवाब किया, वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 people, 2 brains, पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिफरेंट, बट दैट डजंट मीन कि सामने वाला गलत है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. झगड़ा हमेशा इस बात का होता है
कि तू सही मैं गलत या मैं सही तू गलत। झगड़ा हमेशा इस बात पे होना चाहिए क्या सही क्या गलत। इट शुड नॉट बी लाइक कौन सही और कौन गलत। ये बात अगर हम समझ जाएं तो हमारे रिलेशनशिप में कितना चेंज आ जाए। हम झगड़ते इस बात पे। That was a big one. So we really need to understand कि कौन सही कौन गलत का झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा इस क्या सही क्या गलत। Because I am seeing 6 मैं यहाँ से देख रही हूँ, 9 आपको वहां से दिख रहा है। आप गलत कैसे हो सकते हो? और अगर मुझे 6 दिख रहा है तो मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? No, ma'am. Even if you are at fault at something, the question what is right, what is wrong वाली जो चीज है ना, make you look at the problem like a third person and solve that problem rather than the person. Exactly, very true. तो आज की तारीख में you tell me कि we have many friends, ठीक है? Right. और let's say few friends. हर इंसान का अपना एक नेचर है। कुछ के पास बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ के पास कम दोस्त हैं। ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में 1 या 2 दोस्त ऐसे होते हैं जो बट है साथ में है। कई बार उनसे थॉट्स मैच नहीं करते, कई बार अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती। हमारा पर्सपेक्टिव लाइफ का बिल्कुल अलग है, उनका पर्सपेक्टिव लाइफ का बिल्कुल अलग है, बट दे आर स्टिल देयर। गलत नहीं है ना, उनका पर्सपेक्टिव ही तो अलग है। सिमिलर गोज विद रिलेशनशिप, पर्सपेक्टिव ही तो अलग है। फाइनेंस आपको लाइफस्टाइल पे खर्च करना है, आई एम थोड़ा सा सेविंग वाला पर्सन, इट्स ओके ओके। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उन पैरामीटर्स को समझना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइनेंसेस वाले पैरामीटर को समझना कि ठीक है लाइफस्टाइल खर्चा है, बट कुछ तो मिडिल का हम निकालेंगे बीच में। करेक्ट। इन लॉज के साथ कैसा बिहेवियर होगा, आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन, बिकॉज होगा, ठीक है, अप एंड लोज होंगे, यू नो, लेफ्ट राइट सेंटर होगा, तो कैसे आप हैंडल करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट इफ योर फोकस इज बिना ब्लेम गेम के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, बिना ये बोले कि कौन सही कौन गलत और क्या सही क्या गलत पे फोकस करें, तो चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। आपको ये समझना है कि आपको कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज रिस्पेक्ट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट। प्यार वक्त उम्र के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, चांसेस। रिस्पेक्ट वक्त के साथ उम्र के साथ हर चीज जिंदगी के किसी भी पड़ाव के साथ सेम रहनी चाहिए, बढ़ सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट, राइट। तो आपको समझना है कि जो स्पेसिफिक इंसान है, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो आपके ड्रीम्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, या आपके ड्रीम्स उसको हॉबी लगता है कि अभी 4-6 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। ये अभी नया शौक चढ़ा है, लेट्स से एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग, लाइक पॉडकास्ट का नया शौक चढ़ा है, एवरीबडी इज डूइंग पॉडकास्ट, अभी 4 महीने का गेम है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपके सपने को कोई ड्रीम समझ रहा है या हॉबी समझ रहा है, राइट। देन नेक्स्ट कैन बी कि क्या आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है चीजों को लेके, या आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आप उसके सामने एक लेयर, एक मास्क लगा कर हो। आर यू लाइक आप अपने ट्रू सेल्फ पे हो जब आप उस इंसान के साथ हो, या आप उसके साथ मास्क लगा के बैठते हो। आप इमोशनल कॉन्वर्सेशन कर पाते हो, दैट पर्सन इज अवेलेबल और नॉट, क्या वो एम्पैथी रखता है, वो इमोशंस को समझना जानता है, आपके भी और अपने भी, अपने एक्सप्रेस करना जानता है, आपके समझना जानता है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप दोनों की वैल्यूज क्या है, कोर सिस्टम क्या है। बिकॉज सी, स्पेसिफिक के साथ आपकी वाइब मैच कर सकती है, शादी वैल्यू से होती है। जब आप रिलेशनशिप, तो आप वैल्यू देखते हो, इंसान की वैल्यू क्या है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से है ना, फैमिली ने के साथ क्या कैसा कनेक्शन है, हाउ दे टॉक अबाउट देयर फैमिली। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, बहुत कूल डूड हो, और जैसे ही वो मुंह खोले कि मेरा परिवार ऐसा है वैसा है, तो आप समझ जाओ कि जिसने अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करी, वो आपको भी नहीं देने वाला। फाइनेंसिस को लेके बी क्लियर, अगर आपको इतना सा भी ऊपर नीचे लगता है सामने वाला, देन बी क्लियर अबाउट इट। बिकॉज आई वाज शेयरिंग डे बिफोर यस्टरडे विद समवन कि वी हैड वन ऑफ द कपल लाइक फ्रेंड्स, बहुत पहले, अभी तो खैर बहुत सालों से नहीं है कनेक्शन, लेकिन बहुत टाइम पहले की बात है। तो हमने अपने अराउंड एक कपल देखा, जो मेल कपल, he was private job, he was doing the private job, and the female was government services, she was into government services। अब government services अच्छी services, पैसा आता है, सब कुछ आता है। तो जब हम उनसे बात करते थे तो लाइक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, क्या हम बात करेंगे, आप उसको समझाओ ना, तो लाइक आप उसको समझाओ। तब तो ऐसे प्रॉपर काउंसलिंग मैं नहीं करती थी, बट फ्रेंड्स के लिए तो हम हमेशा अवेलेबल होते हैं कि समझाओ ना। तो जब हमने बात किया, जब समझा चीज़ों को लेके कि एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट फीमेल वॉज वेरी क्लियर, मेरा पैसा मेरा पैसा, तेरा पैसा मेरा पैसा, करेक्ट। एंड फीमेल व्हाट शी वाज डूइंग, अब उसके नजरिए से वो सही है गलत है वो अच्छे से जानते हैं, बट शी वाज सेविंग अपना पूरा अमाउंट एज इट इज,
और हस्बैंड की सेविंग से, हस्बैंड की सैलरी से घर, बच्चा, बच्चे के डाइपर, रेंट, फंड्स, एवरीथिंग सिर्फ हस्बैंड की सैलरी से। अपने को वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही थी, जबकि बच्चा भी उनका है, घर भी उनका है, फैमिली भी उनका है, तो हमें तो मिल के जिंदगी चलानी थी ना, मिल बांट के खेलना था ना लाइफ में। तो ये क्या हुआ फिर? सो दिस इज, आपको जरा भी लगे कि कुछ है तो आपको समझना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी विल ग्रो टुगेदर, इफ यस देन गो फॉर इट। If somebody is like, you take care of the home and I'll take care of the other part, मैं करूँगा, और तुम्हें क्या ही करना है, फिर तो बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। It's very important that each individual should grow in relationship. Do you feel that while you talk to a lot of clients, do you feel that women are actually more into the feminine energy once they realize that the partner is earning more than them? Is it a factor? जो हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग है या जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वो इस तरीके से हुई है दैट फीमेल विल बी सेटल्ड अगर उसका पार्टनर फाइनेंशियली सेटल्ड है। तो शादी के बाद सेटलमेंट कैसे होती है? शादी के बाद सेटलमेंट है अगर उसका घर परिवार अच्छा है, इन-लॉज अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा कमाता है, तो शी विल बी सेटल्ड, वो सेफ जोन में रहेगी। इसी कंडीशनिंग के साथ हम बड़े हुए हैं। मेल की कंडीशनिंग में क्या है कि अगर उसका पार्टनर सुंदर दिखता है, सो मेल ऑलवेज विद द ब्यूटी, है ना, तो मेल ऑलवेज विल बी, उनको जो क्राइटेरिया देखा जाएगा, उनका देखा जाएगा विद बी द ब्यूटी। तो जब भी बहू घर में आती है या गर्लफ्रेंड को पेरेंट्स से मिलाने ले जाते हैं, तो पहला जो निकलता है चीज देख के, सोनी है ना, बहुत सोनी है, बहुत सुंदर है। तो ये होता है, उसके बाद पूछते हैं क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या किया लाइफ। तो जो मेल के साथ जाता है, जो कंडीशनिंग हुई है वो हमारी कि उसका पार्टनर ब्यूटीफुल होना चाहिए, और फीमेल के साथ जो कंडीशनिंग हुई है हमारी, स्पेशली मिडिल क्लास सोसाइटी की, दैट इज कि उसका पार्टनर वेल सेटल्ड होना चाहिए फाइनेंसिस को लेकर। अब जब ऐसा आता है कि पार्टनर वेल सेटल्ड है, फाइनेंसिस अच्छे हैं, तो जो फीमेल है वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में ज्यादा होती है, ये फैक्ट है। बट इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बेसिकली एक तो वो कंट्रोल नहीं करती, वो फ्लो करती है, राइट? तो वो फ्लोइंग एनर्जी है, वो एक्सपीरियंस करती है, वो सरेंडर करती है, वो ट्रस्ट करती है। मेल के साथ दिल टेक एक्शन, सो फीमेल्स मैनिफेस्ट मोर, मेल टेक एक्शन मोर, ही इज एन एक्शन ओरिएंटेड, ही इज अ प्रोवाइडर। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज अ प्रोवाइडर, ठीक है, तो उसको पता है कि मुझे एक्शन लेना, ये चाहिए, ला के दूंगा, बट ही विल नॉट सरेंडर। फीमेल विल सरेंडर मोर। तो जब किसी इंसान के साथ वो होती हैं, जब उनके साथ वो लगता है उनको फाइनेंशियल वो है और वो हेल्प कर रहा है हर तरीके से, तो वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में बाय डिफॉल्ट ज्यादा होती हैं। सॉरी मैम, आपको कट कर रहा हूं। दिस फेमिनिन एनर्जी यू आर टॉकिंग अबाउट, इज इट लाइक बेस्ड ऑन सोसाइटल कंडीशनिंग और इट इज बायोलॉजिकल? इट इज बायोलॉजिकल, ओके, स्पिरिचुअल, ओके, इट इज मोर स्पिरिचुअल रादर देन बायोलॉजिकल, इट्स मोर स्पिरिचुअल। सो जब हम फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक, जैसे आई ऑलवेज टॉक अबाउट एंड आई बिलीव इन इट एंड आई हर्ड इट एंड आई लर्नड इट, कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में, अगर लेट्स से आई एम अ हिंदू पर्सन, ठीक है, मैं स्पिरिचुअल भी मानती हूँ, मैं रिलीजन भी मानती हूँ, तो अगर हम बात करते हैं शिव शक्ति की, सो एवरी पर्सन हैज अ शिव शक्ति इनसाइड, हम हर इंसान के अंदर, एंड दिस इज अ ये हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो शिव और शक्ति को मिला के ही शिव है, शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है। तो शिव एंड शक्ति साथ में मिलके ही एक यूनिवर्सल पावर बनते हैं, एक डिवाइन पावर बनते हैं। सिमिलरली हर इंसान के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं। एवरी पर्सन हैज फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी। अब वो वक्त के साथ, उम्र के साथ, समटाइम्स हार्मोनल चेंजेस पे भी वो उभरती रहती है अलग अलग लेवल पे। सो जैसे व्हेन अ फीमेल इज बिकमिंग अ मदर, तो उसकी फेमिनाइन एनर्जीज हाई होती हैं। इफ लेट्स से इफ फीमेल इज वर्किंग ऑन अ बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस चला रही है या कुछ कर रही है, तो शी इज टेकिंग एक्शंस, बिकॉज बिजनेस चला रही है ना, तो शी इज टेकिंग एक्शन, तो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है। तो ये एनर्जीज चेंज होती है, एंड हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, उसकी परसेंटेजेस चेंज होती रहती है। गॉट इट, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू कि जब एक पार्टनर, एक फीमेल पार्टनर का, जब एक जो हस्बैंड है या पार्टनर है, अगर उसकी वो 7 फिगर्स बिजनेस पे काम कर रहा है या उसका फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में ज्यादा होती है, बिकॉज उस टाइम वो सरेंडरिंग जोन में होती है। शी कैन ट्रस्ट हर पार्टनर, शी कैन ट्रस्ट हर पार्टनर, एंड शी अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज इमोशनली टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, money wise taking care of everything, finances wise is taking care of everything, and he's taking care of my emotions, finances, mental, physical, हर चीज
यू नो मेरे अराउंड जो भी उस रिलेशनशिप में आता है, उस दायरे में आता है, उसका वो हर चीज का वो ध्यान रख रही है. तो दैट इज देयर. बट सिमिलरली मैस्कुलिन एनर्जी ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दे आर सरेंडरिंग बिकॉज यू आर देयर एंड यू बिहेव्ड लाइक दैट. इफ यू विल बिहेव इन अनदर वे तो फिर उनका सरेंडर चला जाता है. करेक्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो दे लाइक वो अपने ना बेस्ट फेमिनाइन उसमें होती है. दे आर लाइक मेल्ट विदाउट मास्क, सरेंडरिंग, बिकॉज दैट पर्सन इज अवेलेबल. इमोशनली वो वनरेबिलिटी समझ रहे हैं, वो नाजुकता को समझ रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उसके साथ इमोशन शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं हूं ना, टेंशन नहीं है. I really feel that जब आपने वो चीज़ बोली ना, that men look for how the female is looking, बहुत percentage of the काम वहीं पे हो जाता है. That's why I think females are more driven towards the fact that how they look and they work more on that. And while जो males होते हैं, females के लिए क्या होता है, I think they are very much into what they hear, how confident the guy is. इसलिए the guys are very much focused on the fact that what they are telling to the women. Because how they are making her feel, it is very very important. Very important. I think शायद आपके पास आज पैसा नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को बिलीव करवा सकते हो दैट आने वाले 3-4-5 साल में होगा, इट्स अ गेम चेंजर. वेरी ट्रू. वो कहते हैं ना, शक्ति ने अपने मुंह से बोल दिया तो हो गया फिर. राइट. शक्ति सो पावरफुल. शक्ति के बिना शिव नहीं है. शक्ति सो पावरफुल, दैट फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी सो हाई. इफ समबडी कैन अंडरस्टैंड ना, तो वो लाइफ में पता नहीं कहाँ से कहाँ, क्या से क्या कर ले. बट फेमिनाइन एनर्जीज ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले को वो किस लेवल पे क्या बोल रही हैं, क्या समझा रही हैं, कैसा सपोर्ट कर रही हैं और मैनिपुलेट कर रही हैं. व्हाट दे आर डूइंग, दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डू women feel the specific feminine energy that if they are not able to manipulate their partner? Most of the time female manipulate and try to manipulate the partner who's emotionally strong because they just want to take that confirmation and कि हाँ ये है, इसे मैं ठोक बजा के समझना चाह रही हूँ. Reason because they really want, and female what really want कि they want to be heard, they want to be understood, they want कि वो safe zone सामने वाला इंसान है. अब जिस इंसान के साथ वो जा रही है उसे ये समझना है, if I'll be in chaotic mood, if I'll have mood swings, if I'll be like cranky at the point, how this person gonna help me, how this person gonna handle me. अगर इसने मैंने तो कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि फीमेल्स जानबूझ के ऐसे चीजें क्रिएट करती हैं. फाइनली गेटिंग द कॉन्फर्मेशन. सीरियसली कि वो जानबूझ के ऐसे ऐसे सिनेरियोज लेकर आएंगी या ऐसी कॉन्वर्सेशन करेंगी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सामने जो मैस्कुलिन एनर्जी है क्या वो ट्रिगर हो रही है और कामली हैंडल कर रही है. अगर कामली हैंडल कर रही है और मैनिपुलेट नहीं हो रही, देन दे आर लाइक द परफेक्ट एग्जाम्पल्स. रीजन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बात पे मेल एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, ये ट्रिगर हो जाए किसी तरह से कर, बट सामने वाला मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन के कह रहा है आई कैन अंडरस्टैंड योर हर्ट, मैं हूं ना, बट डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी. क्या बात कर रहे हो. देन शी विल बी लाइक, ओह दिस इज माय पर्सन, दिस इज द गाय, बिकॉज उस इंसान ने अपनी जो वो है उसको नहीं खोया. उसने कहा ना मैं हूं ना, एंड आई कैन, और एम्पैथी भी रखी, इमोशंस भी अंडरस्टैंड किए. आई नो यू आर हर्ट, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. शी लाइक झै पूरा कच्चा चिट्ठा सुना दिया. उसने समझ भी लिया, उसने ये भी वैलिडेट किया, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, यू आर हर्ट, मैं ध्यान रखूंगा, मैं हूं ना, टेंशन मत ले, बट डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी. घुमा मत मुझे, मैं घूमूंगा नहीं. तो फीमेल्स जान के भी ऐसा करती हैं बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू श्योर, वो ना चाहिए कि हाँ. वाई? बिकॉज रिलेशनशिप में एक इंसान को ऐसा होना जरूरी है. राइट. आइडली दोनों को होना चाहिए, बट लाइक अगर हम फीमेल की बात करें तो वो ये चीज मैस्कुलिन एनर्जी में देखती है, मैस्कुलिन पावर में देखती है कि क्या उसके इंसान ये है, क्योंकि अगर दोनों ही का दिमाग 7वें आसमान पे है तो रिलेशनशिप विल नॉट वर्क. अंडरस्टूड. वन पर्सन शुड बी काम इन रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से इफ आई विल बी द पर्सन हु लाइक क्योटिक और मेसी, कि एसी काम नहीं कर रहा और पूरे घर में तबाही मचा दी कि एसी काम नहीं कर रहा, ठीक करो, इसको बुलाओ, इलेक्ट्रीशियन बुलाओ, ये करो वो करो, एंड यू आर काम,
इट्स ओके, आई कॉल, मैं बुलाता हूँ, 10 मिनट्स में ठीक हो जाएगा, सब खत्म, ठंडा, मैं चिल. दैट इज द रीजन. सो यस, फीमेल डू दैट, फीमेल करती हैं ऐसा, बट जस्ट वॉन्ट टू टेक दैट कि दिस इज माई सेफ जोन एंड दिस पर्सन कैन हैंडल मी और वी कैन हैंडल मी ईच अदर. And I think this I figured out after my first relationship, few years after that sometimes नहीं, मेरे को ऐसा लगता है most of the times women don't need answers from you. They just want you to listen to them and understand what they are saying. They know the answer. This is very true. I always say this. I mean, one of my favorite book, मैं हर जगह इसको mention करती हूँ, that women are from Mars and men are from Mars and women are from Venus. ये बहुत जॉन ग्रे की बहुत अच्छी बुक है. तो इस बुक में उन्होंने बहुत सिंपल बोला है कि दोनों गलत नहीं है, दोनों की वायरिंग अलग अलग हुई है. हर चीज़ को, हर सिचुएशन को लेने का, देखने का, सहने का नज़रिया दोनों का अलग है. अब कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ हुआ है, व्हाट फीमेल वांट, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू डिस्कस. ठीक है, डिस्कस से ज्यादा उन्हें बोलना है, उन्हें सिर्फ अपने आप को खाली करना है. आपका क्या रोल है? सिर्फ सुन लीजिए, बिकॉज दे डोंट वांट सोल्यूशन. उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ उनको तसल्ली से सुन. हाँ अच्छा ऐसा हुआ, तो जाकिर खान ना, अच्छा जाकिर खान के शो आपने सुना होगा, उसने वो फिगर आउट कर दिया कि कहाँ अच्छा बोलना है, कहाँ ओके बोलना है, और कहाँ उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि अच्छा ऐसे भी हुआ था, अच्छा तेरी फ्रेंड ने ऐसे किया. आप उनको सुन लीजिए. देयर वायरिंग ऑफ ब्रेन. when a male person is into chaos, झगड़ा, कोई भी चीज़, वो अपने आप को एक वॉल के अंदर ले लेते हैं, वो एक केव में चले जाते हैं. दे नीड साइलेंस, दे नीड टाइम. मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, जस्ट चिल, मेरे को आप छोड़ दो अभी थोड़ी देर अकेला. मेल्स आर लाइक दैट. फीमेल्स नहीं है, उन्हें डिस्कस करना है, उन्हें सुनाना है, उन्हें अपने आप को खाली करना है, उन्हें सब कुछ बताना है. दैट हैपन्स. तो ये इट्स जस्ट कि उनकी वायरिंग अलग है चीज़ों को लेके. लाइक अभी आई वाज शेयरिंग विद समवन ऑल्सो कि आई हैव सीन राज शमानी का पॉडकास्ट विद आमिर खान, एंड हाउ ब्यूटिफुली ही एक्सेप्टेड कि जब भी मैंने रिलेशनशिप में झगड़े किए, गलतियां करी, मैं आज वो सारी समझ पा रहा हूँ. एक टाइम पे मैं नहीं समझा, मैंने थेरेपी ली, मैंने काउंसलिंग ली, सब कुछ किया. एंड हाउ ब्यूटीफुली इज एक्सेप्टिंग कि जब भी मेरे और मेरे पार्टनर का झगड़ा होता था, मैं अपने आगे एक वॉल बना लेता था और मैं 2-2, 3-3 दिन तक उससे बात नहीं करता था. शी इज ट्राइंग एवरीथिंग टू टॉक. वो हर कोशिश कर रही है, कभी पानी रख रही है टेबल के आगे लाके, कभी बेड के साइड में, कभी साथ में आके बैठ रही है, बट आई एम लाइक छोड़ दो मुझे अभी, आई नीड माई स्पेस, आई नीड माई टाइम. सो दिस इज अगेन देयर एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज. हर चीज़ को लेने का तरीका और हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग अलग है. Do women want their men to be emotionally vulnerable to them? Yes. Okay. Yes. They need to be emotional available, कि बात करें, उनको समझें, अपने भी एक्सप्रेस करें. बट मेल तो डोंट नो ना हाउ टू एक्सप्रेस, आता ही नहीं है. तो दे रियली वांट कि वो एक्सप्रेस भी करे और समझे भी इमोशंस को. अब एक्सप्रेस करने की अगर बात है तो इसमें मेल की गलती नहीं है, बट येस दे कैन लर्न, येस दे कैन लर्न. उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि बचपन से लेके आज तक जो उनकी कंडीशनिंग हुई है, जो सिखाया गया है, बेटा तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, ठीक है, चुप हो जाओ, आंसू नहीं निकालो, किसी को नहीं दिखाना, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द प्रोटेक्टर, चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए लाइफ में. यही सुन के तो बड़े हुए हैं, तो उन्हें बेचारों को रोना आता ही नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है. बट टाइम बाय बीइंग टाइम, क्या वो सीख सकते हैं? आंसर इज यस. क्या उन्हें सीखना चाहिए? आंसर इज यस. देयर इज नथिंग रॉन्ग, रोने में कोई बुराई नहीं है. क्राई मतलब ये, और ये वीकनेस का साइन नहीं है. यू नो, आप रो रहे हो, आपकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट you're weak, it's about this is your strength man. But we don't understand this. तो हमें सिखाया नहीं गया. फीमेल को बचपन से इमोशन सिखाए गए हैं. आपने नहीं देखा आपके घर में छोटी बहन भी होगी तो उसके अंदर आपको माँ दिखती है. The way she take care of you, भाई आया है, मुझे खाना देना है, मैं बनाती हूँ. एक तो इतनी जल्दी खाना बनाना सीख जाना है, सब कुछ सीख जाना है, कहाँ से आता है ये? They are very emotional बचपन से. तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो मदर से आया है, जो बॉय है उसमें फादर से आया है, दैट स्ट्रॉन्ग है, रोना नहीं है, इमोशंस नहीं दिखाने. सो दे हाइड देयर इमोशंस, बट दे नीड टू लर्न कि डोंट हाइड योर इमोशंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मैम इन अ वर्ल्ड दैट इज सो कनेक्टेड, आई फील वी आर वेरी वेरी अलोन. इन टाइम्स वी आर रिलाइंग ऑन special algorithms to derive our emotions. हाँ. Do you
hear about clients relying on AI for these advices, or like whatever their algorithm shows, that is how their emotions will be. Yeah. Do you feel that? I can feel that, and I'm completely, agreeing with you, because it's just like 3 or 4 weeks back. I'm just taking an example. Just 3 or 4 weeks back, or like not month, 3 or 4 weeks back. I was sitting with one of my friend, and we were having chit-chatting, like we are chit-chatting, we're having coffee and everything was happening. And suddenly we came onto this topic called AI. अचानक से. And she started talking about AI. You know what? AI कहाँ से कहाँ पहुँच गया? Like हाँ बिल्कुल पहुँच गया. कहाँ से कहाँ? And people are relying on that, this, that. You know what I have searched on AI? I said what? Like I was searching my soulmate. That who is my soulmate and where is he? You know what? So this level का generation, and we have that generation gap. Right. She's friend of mine, but she's very younger to me. It's like 1 decade का gap है हम दोनों में. And she like, I have searched, तो you know what? मैंने पता लगा लिया इस बात का that my mother is my soulmate. वो 7 जन्मों से मेरे साथ हैं अलग अलग रूप में. मैं कहा, you're searching this on AI? She said, हाँ. I told him कि can you be my what? I told AI, can you be my astrologer for next few minutes? उसने बोला हाँ, अपने डेट शेयर करो, ये शेयर करो, ये शेयर करो, मैं बताता हूँ. And she entered into different level altogether. She have not searched the bad questions I'm saying. But can you imagine this? कि we are searching कि who's my soulmate, और मेरे पिछले जन्म में कौन रहा होगा, पिछले जन्म में मैं कैसी रही हूँ, पास्ट लाइफ सब कुछ सर्च कर रही है उस पर. तो कहाँ जा रही है जनरेशन? सो ये जो AI को हमने कंपेनियन बना लिया. अब एक तो ये एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि येस दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर. वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज हो क्या गया ना, इमोशंस के लिए बंदा चाहिए. और बंदा ऐसा चाहिए जो जज ना करे, बंदा ऐसा चाहिए जो पलट के जवाब ना दे, बंदा ऐसा चाहिए जो इमोशनल अवेलेबल रहे, बंदा ऐसा चाहिए जो वक्त दे. बट व्हेन इट कम्स टू AI, इंस्टेंट रिप्लाईज, नो जजमेंट, इमोशनली अवेलेबल, and it's your safe space. And मैम आपकी सारी बातों से अग्री करेगा 100%. मैं कहा ना, पलट के जवाब नहीं देगा, ये बताएगा ही नहीं ना आप गलत हो. आपका पार्टनर तो आपको बता सकता है किसी लेवल पे कि दिस इज रॉन्ग डूड, आई मीन, बट AI इज नॉट टेलिंग यू एनीथिंग. सो पीपल आर लाइक, उन्होंने AI को ही अपना सोलमेट बना लिया है, AI से ही बातें कर रहे हैं, AI से ही सवाल कर रहे हैं. बिकॉज मैंने कहा ना कि इन ह्यूमन को रहना पड़ेगा. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, एक इंसान रहेगा तो वो वक्त देगा, इमोशंस देगा, पेशेंस रखेगा, सब चीज रखेगा ना. और इसके लिए इंसान अवेलेबल ही नहीं है. और जो अवेलेबल है, या तो वो इमोशनली अनअवेलेबल है या टॉक्सिक है. तो उन्हें लग रहा है इस इमोशनल अनअवेलेबल पर्सनालिटी के साथ जुड़ने की बजाय, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की बजाय AI से दोस्ती करते हैं. AI आपको जब चाहिए तब रिप्लाई करता है, जैसा चाहिए वैसा रिप्लाई करता है. आप उससे कोई भी सवाल कर सकते हो, वो इमोशनल अवेलेबल है. आप कुछ भी बोलो, वो बोलेगा आई अंडरस्टैंड यू, I feel you. That's a perfect point. That's a very different narrative. Narrative, right? So इसलिए लोग उस AI एल्गोरिथम में जा रहे हैं. प्लस वो जो एल्गोरिथम में उनके चलता है, रील्स में चलता है. मैं I have heard this, एक बहुत अच्छी बात बोली थी अनिरुद्ध आचार्य जी जो गुरुदेव हैं, Okay. वो हमारे पॉडकास्ट पे भी आए थे. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब आप रील, तो आपको देखनी ही नहीं चाहिए. रीजन बीइंग, आप एक रील देखते हो, आप हाई होते हो, और दूसरी ही रील आपको डिप्रेशन की दिखती है. तीसरी रील आपको रिलेशनशिप टूटे हुए की दिखती है. चौथी रील आपको फिटनेस फ्रीक की दिखती है. तो आपके इमोशंस हर 30 सेकंड की रील पे चेंज हो रहे हैं. तो आप रुकोगे कहाँ? देयर इज नो पॉइंट. और आप मतलब एक पल आपको लगता है आप लाइफ में कुछ भी कर दोगे. जब आपका पार्टनर ये बोलता है कि लाइफ में आप सब कुछ कर लोगे, मैं हूं ना साथ, तो चल तो सही, तो दैट पर्सन इज देयर विद यू इन योर लोज, इन योर हाइज. बट AI एक तरफ एक रील में बोलता है कि यू कैन डू दिस, आप ये करो, आप सुबह 5 बजे उठो, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप ये कर सकते हो, आप एफर्मेशंस लिखो, आप मेडिटेशन करो, यू कैन डू एनी डैम थिंग इन द वर्ल्ड. बट दूसरी ही रील बोलती है कि मैंने बिजनेस शुरू करा, इसमें नुकसान हो गया, दोस्तों जिंदगी में ये मत करना, मेरे दोस्त ने मुझे ठग लिया, ये स्कैम हो गया. बोलता है अच्छा रुकते हैं जरा. सो दिस इज हैपनिंग विद AI. आई थिंक मैम लोग ना अकेला नहीं रहना चाहते. क्या होता है, जैसे नाउ आई एम नॉट करंटली इन अ रिलेशनशिप, राइट? अभी मैं सिंगल हूँ. आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड आई अंडरस्टैंड कि कहीं जगह पे चलो अगर आपको स्टेप डाउन करना भी पड़ भी गया, आई अंडरस्टैंड कि वो कितना ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में. तो नाउ आई एम लर्निंग. बट इफ आई एम फाइंडिंग माई हाइज टॉकिंग टू AI,
स्क्रोलिंग द रील्स, तो आप अपनी आप की बॉडी को इतना हाई दे जा रहे हो अपनी एक फ़ोन की स्वाइप पे, तो आपकी जो अर्ज है ना वो ख़त्म ही हो जाएगी कि फाइंडिंग दैट पार्टनर फॉर यू जिसके साथ आप पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हो. एग्जैक्टली, एंड अलॉन्ग विद दैट आई मीन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि आज लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी एनर्जीज, उनका थॉट प्रोसेस, ब्रेन एक जगह पे है ही नहीं. तो मेंटल हेल्थ तो हिलेगी ना बॉस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि लेट्स से हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं. अब कल्चर आ गया स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, तो जो डिजिटल एप्स आ गई, सोलमेट ऐप आ गई, रिलेशनशिप की एप्स आ गई है. अब इस ऐप ने एक तो ऑप्शंस लाइफ में दुनिया भर के दे दिए. जहां ऑप्शंस होते हैं वहां हमेशा कंफ्यूजन होती है, वहां सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होती. व्हाई? बिकॉज यू हैव मेनी ऑप्शंस. कितना आसान था ना जिंदगी जब दूरदर्शन और मेट्रो था, डीडी मेट्रो. सिंपल. हम एड्स भी इंजॉय करते थे, है ना, बीच में एड्स भी इंजॉय करते थे, कुछ आ गया बीच में वो भी इंजॉय करते थे, एंड वी वर लाइक सॉर्टेड. मतलब आई वॉज सॉर्टेड. व्हाट? मोगली देखना है मुझे, शक्तिमान देखना है मुझे, आई वॉज वेरी सॉर्टेड, है ना. पेरेंट्स भी सॉर्टेड, रंगोली आएगी सुबह, गाने बजते हैं जिसमें, सॉर्टेड. द मोमेंट ब्रॉडबैंड कम, जैसी ब्रॉडबैंड आया तो फिर टाटा स्काई आ गया, ब्रॉडबैंड आ गया, तो चैनल्स आ गए, तो बड़ी एक्साइटमेंट हो गई. अच्छा ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, अब ये भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं. फिर आया नेटफ्लिक्स. आप प्लेट लेके बैठते हो खाने की, आपका खाना खत्म हो जाता है, आप ये नहीं समझ पाते कि मुझे क्या देखना है. Crazy. Seriously, I mean, it's done. Like, आज मैं ये enjoy करके ना, this is my favorite food, I'll enjoy, I'll watch movie and I'll see this. आपका एक खत्म हो गया. आप एक सीन पे, आप एक मूवी पे, आप एक सीरीज पे नहीं टिके कि आपको क्या देखना है. तो जहां ऑप्शन ज्यादा होते हैं वहां ये कंफ्यूजन है. और डेप्थ किसी रिलेशनशिप में तब तक नहीं बनेगी जब तक आप में ठहराव नहीं आएगा. राइट? आप एक डेटिंग ऐप पे गए, आप उसने डेटिंग ऐप से आपने 10 लड़कों से बात करी या 10 लड़कियों से बात करी, आपको उन 10 में से एक पसंद आई. लेट्स से नाम लेते हैं राहुल, ठीक है, और राहुल तो सबका फेवरेट. एक नाम लेते हैं राहुल, तो एक राहुल पसंद आया. नाउ यू लाइक ओके, 10 से मैंने बात करी, राहुल लुक्स नाइस, अब इससे बात करते हैं. लेकिन बात करके धीरे धीरे आपको अच्छा लगा कि जो आप चाहते हो उसमें वो मिल रहा है. बट यू नो व्हाट हैपेंड एट द बैक एंड? आपने ऐप डिलीट नहीं करी, स्टिल पिंग आ रहे हैं, स्वाइप आ रहे हैं. अब आपका वहां से कनेक्शन टूट के यू आर फाइंडिंग समवन एल्स कि ये थोड़ा और बेटर लग रहा है, ये थोड़ा और बेटर लग रहा है. तो जहां आप ठहराव नहीं लाओगे, जिस रिलेशनशिप पे आप रुकोगे नहीं, उसमें डेप्थ कभी नहीं बनेगी. दैट इज वन थिंग जो डिजिटल में आया. अब मैंने मेंटल हेल्थ की बात करी थी, डिजिटल से उसको समझते हैं. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. आज की जनरेशन मेंटल हेल्थ पे बात करती है, विच इज वेरी गुड दैट दे आर अवेयर. राइट. बट आप प्लीज नीड टू अंडरस्टैंड दिस. स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट का कल्चर है. अब जब मेरा स्वाइप मैच करता है, मेरा डोपामिन एकदम से हाई जाता है. फीलिंग जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड दिस दैट, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है कुछ दिन के बाद. दैट्स नॉट वर्किंग. देन अगेन आई फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ लोनलीनेस. तो मेरी मेंटल हेल्थ का क्या है? एकदम से डोपामिन हाई, हैप्पी हार्मोन्स, एवरीथिंग इज गुड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा है, जिंदगी बहुत सही जा रही है, और अचानक से खट, कमरे में अकेले, कोई है ही नहीं. ये कितना बड़ा हाई एंड लो है. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. तो ये जो अलॉग्रिथम के साथ, रील्स के साथ, डेटिंग एप्स के साथ लोग जा रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वो अपनी मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट. यस, 100%. इतना हाई एंड लो आप जाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई मीन आप जिम भी जाते हो तो आपको बताया जाता है कि किस टाइम पे, किस स्टेज पे आप फिटनेस जर्नी के हो, आपको किस टाइम पे, कौन सी स्टेज पे कितनी एक्सरसाइज करनी है. करेक्ट. आप अपने आप को वो हाई करके कर तो लेते हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है आपकी हालत क्या होती है. जो फर्स्ट डे पे बहुत जाके जिम करते हैं, दैट्स लाइक द सेम थिंग. सो ये एल्गोरिथम इट्स ओके, बट ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा है. मैम आप ये एल्गोरिथम की बात कर रहे हो, मेरा तो लिटरली माइंड फक हो गया लास्ट के कुछ दिन से. जितनी मैंने रील्स, जितनी मैंने प्रमोशन सैयारा मूवी की देखी है, I was like shocked to see you are made to feel that you're missing out on something if you're not watching that movie. Now, what I was thinking is, specifically Bollywood ने, I think heartbreaks को बहुत ज़्यादा glorify कर दिया है. Yes. So, I really feel we really love the situation where we are heartbroken or where we are like lonely. Because we are looking it at from a third person perspective that wow, what a story I am writing. Yeah. How cool is this heartbreak? How cool will it look if it were a movie? So we are glorifying heartbreaks like crazy.
एंड आई थिंक बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. बहुत ही बड़ा हाथ है. आई एम कम्प्लीटली लाइक आई 100% अग्री विद यू, बिकॉज बॉलीवुड हो गया, या जैसे हम बोलते हैं ना कि शायरी में दर्द कब आता है, जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है. म्यूजिक में दर्द कब आता है, जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है, या वो खुश होता है बट मोर ओवर हार्ट ब्रेक होता है. तो यू नो इसको ग्लोरीफाई इतना ज़्यादा कर दिया. तो हमने म्यूजिक बनाया हार्ट ब्रेक पे, हमने गाने बनाए हार्ट ब्रेक पे, हमने शेरो शायरी करा हार्ट ब्रेक पे, हमने पिक्चरें बनाई हार्ट ब्रेक पे. एंड समवेयर बॉलीवुड ने ये दिखाया कि जिस हीरो का हार्ट ब्रेक हुआ है उसमें ज़्यादा डेप्थ है. बहुत डेप्थ है उसमें ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट ब्रेक का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, या हम ले रहे हैं कि इसको ग्लोरीफाई कैसे किया है. तो आई एम श्योर यू हैव सीन द रॉकस्टार मूवी, है ना. तो रॉकस्टार मूवी में वो समोसे खाना जाता है और बोलता है कैंटीन में जाके कि मेरा दिल टूटा है, 2 समोसे लेकर आ. और जब समोसे के साथ उसे चटनी नहीं मिलती तो बड़ा चिल्लाने लगता है कि चटनी कहाँ है, इसके साथ चटनी नहीं थी. तो जब उसका दोस्त साथ में खड़ा होता है कि जिसका दिल टूटता है ना वो चटनी नहीं ढूंढता. तो अगर तेरा दिल टूटेगा ना, जब सही असली वे में तेरा दिल टूटेगा, तब निकलेगा तेरे अंदर का म्यूजिक, तब निकलेगा तेरे अंदर का रॉक स्टार. दिस इज हैपनिंग विद मोर ओवर मूवीज कि जब दिल टूटता है तो फिर वो लाइफ में कुछ करता है, आगे बढ़ता है, वो करता है. तो ये फैक्ट है कि ग्लोरीफाई जो किया है, चाहे वो तमाशा मूवी हो, चाहे वो देवदास हो, है ना, चाहे वो रॉक स्टार हो, ये ग्लोरीफाई करने वाली सारी पिक्चरें बॉलीवुड में बनती हैं. दिस इज अ फैक्ट. नाउ यस, कुछ लोग जो हैं हार्ट ब्रेक होने के बाद देयर लाइक उन्होंने अपनी स्टोरी बना लिया उसको, क्योंकि एम्पैथी मिलती है, ठीक है, सिंपैथी मिलती है उनको, एम्पैथी मिलती है, सिंपैथी मिलती है. एंड दे लाइक दे रियली वांट टू बी इन दैट चैप्टर, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो एक चैप्टर है. उसके चक्कर में आप पूरी किताब में जो स्टोरीज लिख सकते हो अपनी लाइफ के, वो आप लिख ही नहीं रहे हो. राइट? आपको उसी जोन में रहना अच्छा लगता है, आप इसी चक्कर में नए रिलेशनशिप में भी नहीं जा रहे. और आपको लगता है कि यू नो पीपल विल लाइक ओ दे विल शेयर माई स्टोरी कि मेरा कितना बड़ा दिल टूटा, उसके बावजूद भी देखो मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ. दे वॉन्ट दैट. वो ऑब्सेशन है उस चीज का कि उन्होंने अपनी ना आइडेंटिटी ही बना ली है. टूटेगा मैं खड़ा हूंगा, टूटेगा मैं खड़ा हूंगा, टूटेगा मैं खड़ा हूंगा. तो इट्स रियली क्रेजी. दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि प्यार में जब तक आप टूटते नहीं हो तब तक आप जुड़ते नहीं हो. ये बात फैक्ट है. बट जुड़ने का प्रोसेस है हीलिंग. आपको हील करके आपको ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि नाउ दिस इज द टाइम आई रियली वांट टू हील एंड मूव आउट ऑफ इट. इट्स अ हाई टाइम. वो हीलिंग जर्नी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में जो चल रहा है, वो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टेइंग इन दैट सेम स्टोरी. और आपको इस समझने की जरूरत है कि ग्लोरीफाई कब तक, एक दिन तो उसका अंत होगा. मैम इसका रीजन ये है, आई रियली फील दैट people don't want a relationship. People just want someone to witness their loneliness. Very true. How lonely they are in their life. Very true. कोई तो बोले मैं हूं ना, मेरे बाबू ने खाना खाया. कोई तो चाहिए उन्हें. आप ठीक हो, मैं हूं, टेंशन मत लो. आप अकेले हो, आप अपनी स्टोरी मुझे सुना सकते हो. So you are there someone जिसको आप अपनी स्टोरी सुना सकते हो. Exactly. So someone is there for you basically. Sorry. Someone is there for you जिसको आप अपनी स्टोरी सुना सकते हो, जो आपके खालीपन का साथी है. रिलेशनशिप नहीं चाहिए. उस ट्रैप में किसी को जाना नहीं. अगर वो किसी के लिए ट्रैप है रिलेशनशिप, उसमें जाना चाहिए. बस उसको अपने खालीपन का साथी चाहिए जिससे वो अपनी बातें बोल सके, जिसके साथ ना रिलेशनशिप है ना दोस्ती है, जिसके साथ कोई प्रेशर नहीं है, सोसाइटल प्रेशर नहीं है, रिलेशनशिप का ठप्पा नहीं है, कुछ भी नहीं है. करेक्ट. तो दे आर लुकिंग फॉर दोज पीपल. And do you think people are actually falling in love with a person, or they have actually fallen in love with the image that they have created of that specific person in their mind? Yes. बहुत बार होता है कि हम एक ऐसा इमेजिनेशन में हम रख लेते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं एक ऐसा इंसान जो रियलिटी में नहीं है. हमने उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज बना दिए, हमने एक चेकलिस्ट बनाई है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी. बट जब रियलिटी में आता है तो वो चेकलिस्ट कहीं से मैच ही नहीं करती. बट समटाइम्स देयर आर ट्रू लव होता है, कई बार सच्चा प्यार होता है, और कई बार इस लाइक कि वो प्यार सच में सच्चा होता है लेकिन वो मैच नहीं कर रहा. लव इज देयर. मैंने कहा ना, लव तो वाइब से भी हो सकता है. रिलेशनशिप और शादी वैल्यू सिस्टम से होती है. तो लव तो आप किसी की वाइफ से भी प्यार कर सकते हो. इसकी वाइब बड़ी अच्छी है यार, बड़ा पॉजिटिव इंसान है, क्या ड्रेसिंग सेंस है, अच्छा बोलता है, तो उसकी वाइब से प्यार करने लगते हो. तो प्यार वाइब से भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप तो वैल्यू से चलता है. तो जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो, तो जब आप ऐसी इस तरह की सिचुएशन में आए, तो आप प्यार कर सकते हो, प्यार सच्चा हो सकता है. दैट आई कैन कंप्लीटली अग्री. बट अलग अलग चेकलिस्ट हो सकती है कि जो आपने इमेजिन करा था और जैसा ये निकला वो अलग अलग है.
दैट इज पॉसिबिलिटी देयर. बट हाँ, उसके कुछ पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर मेरा इमोशनल अवेलेबिलिटी का पैरामीटर है, मेरा ट्रस्ट का पैरामीटर है, मेरा रिस्पेक्ट का पैरामीटर है, अगर ये भी है तो एक दो के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या थोड़ा कम ज्यादा के साथ हम मैनेज कर सकते हैं, चल जाएगा. बिकॉज 100% परफेक्ट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा. ना आप परफेक्ट हो, ना सामने वाला परफेक्ट है. एंड लव इज नॉट अबाउट परफेक्ट. रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट फाइंडिंग अ परफेक्ट पर्सन. इट्स लाइक जो इम्परफेक्ट है उसमें से अच्छा निकाल लो. इम्परफेक्ट आप भी हो, इम्परफेक्ट मैं भी हूँ, लेकिन इम्परफेक्ट होते हुए भी कुछ चीजें तो होंगी जो अच्छी होंगी, उसको लेके आगे बढ़ते हैं. Tell me if I am getting it right. Yeah. Love is actually a process rather than a specific situation that okay, now I love this person. हाँ, It is a process, right? It's a process. It's a process. And maybe वो आपकी सिचुएशन में 2 दिन में, 3 में, 4 बार भी वो प्रोसेस हो जाए. 4 महीने में वो 4 बार प्रोसेस हो जाए. 6 महीने में वो 10 बार ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जिसमें लगा यार मुझे इस इंसान से वापस से प्यार हो गया. इंक्लूडिंग मैरिज ऑल्सो. क्योंकि इट्स अबाउट एक ही इंसान से आपको हर रोज सेम इंसान से प्यार करना है. तो कितने सारे ऐसे इंसिडेंट आएंगे. तो यस, ऑफ कोर्स, दैट्स देयर. And is it true that everyone has their soulmates? ओके, सो पहले समझते हैं कि सोलमेट बेसिकली क्या है. सोलमेट, हर सोल एक जर्नी पे निकली है और हर सोल का एक सोलमेट है, राइट. तो सोलमेट कैन बी 2 अलग अलग लोग हैं, बट सोल कनेक्शंस हैं हमारे. तो ये जर्नी सबके साथ है. सोलमेट सबके होते हैं, बट द गुड थिंग इज, पहला, सोलमेट आपको कभी भी मिल सकता है. दूसरा, सोलमेट एक से ज्यादा हो सकते हैं. तीसरा, सोलमेट सिर्फ पार्टनर नहीं होता. सोलमेट कैन बी योर मदर, सोलमेट कैन बी योर BFF, सोलमेट कैन बी योर पार्टनर, सोलमेट कैन बी योर गुरु, सोलमेट कैन बी योर मेंटोर, सोलमेट कैन बी योर टीचर, योर सोलमेट कैन बी योर अ वेरी गुड फ्रेंड. तो सोलमेट एक से ज्यादा हो सकते हैं. सोलमेट लाइफ के अलग अलग एरिया में आपको मिल सकते हैं. बिकॉज कुछ सोलमेट आते हैं आपको ग्रो कराने के लिए, कुछ सोलमेट मिलते हैं लाइफ में लेसन्स देने के लिए, कुछ सोलमेट मिलते हैं आपको चैलेंज करने के लिए कि हिम्मत है तो करके दिखाते हो, और आप उसी बेस पे कर जाते हो. सो हर लाइफ के स्टेज पे, उम्र के पड़ाव पे, जिंदगी के पड़ाव पे आपको अलग अलग सोलमेट्स मिलते हैं. और सिर्फ लाइफ में एक सोलमेट मिलता है ऐसा नहीं है. आपको उम्र के, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग सोलमेट्स मिलते हैं जो आपकी जर्नी को एक नई रास्ता दिखाने आते हैं, या आपको वापस से याद दिलाने आते हैं कि ये कर्माज रिपीट मत कर, पिछली बार भी किए थे. या आपको ये आपको चैलेंज करने आते हैं कि बेटा बहुत कंफर्ट जोन में, ऐसे कुछ नहीं होने वाला. जब तक ये नहीं किया ना, नहीं होने वाला. वो दोस्त आपका हो सकता है जो उंगली करके चला गया. आप सोचते हो ना कि इसने मुझे उंगली कर दिया लाइफ में, अब तो मैं करके. दैट कैन बी योर सोलमेट 100%. And how do we figure out that? आपकी उसके साथ वाइब मैच होती है. आपकी उसके साथ वो बिना कहे आपको समझ जाता है ना. वो बिना कहे ना. समटाइम मम्मी आप कैसे समझ जाती हो मुझे भूख लगी है, आप कैसे समझ लेते हो कि मैं परेशान हूँ. स्पेशली मदर्स ना बड़ी जल्दी समझ जाती हैं. तो वह ना, कभी खुशी कभी गम दरवाजे पे ही मिलती है जब भी वो आता है. तो आप कैसे, तो आपका दोस्त, आपका BFF, आपका पार्टनर समझ जाता है कि अंदर कुछ चल रहा है. बिना बोले आपके इमोशन समझता है. आपकी आंखों में देख के आपको पढ़ लेता है क्या चाहिए. आपको क्लैरिटी देता है कई बार लाइफ में आपका सोलमेट. यू आर लाइक हेयर एंड देयर एंड देयर एंड देयर, यू हैव डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शंस, यू डोंट नो वेयर टू गो. वो आपको क्लैरिटी देगा. इसलिए हम बोलते हैं समटाइम्स गुरु इज द सोलमेट, बिकॉज गुरु आपको कंफ्यूजन नहीं देता, क्लैरिटी देता है लाइफ में कि करना क्या है. देख तू इसमें अच्छा है, निकल जा. तेरे लिए ये बहुत अच्छा है, निकल जा, ये करके देख. तो दैट योर सोलमेट विल गिव यू क्लैरिटी. योर सोलमेट मेक यू ग्रो. योर सोलमेट विल चैलेंज यू कि बेटा दम है तो करके दिखा दे. एंड योर सोलमेट विल अंडरस्टैंड यू बिना कुछ बोले. योर सोलमेट विल रीड योर माइंड लाइक एनीथिंग. And it is completely fine that if your partner or your spouse is not your soulmate. Yes, 100%. Because soulmates हमेशा लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनने नहीं आते. It's not necessary. Okay. It's not necessary. So let's say if I have my husband, I found him as a soulmate, so he became my partner. But it's not always. हर बार सोलमेट आपको आपके साथ लाइफ में सेटल होने नहीं आएगा, बिकॉज हर बार सोलमेट सिर्फ पार्टनर नहीं है ना. योर सोलमेट कैन बी योर गुरु, योर सोलमेट कैन बी योर मदर. तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी हुई है, इनफैक्ट वो भी आपका सोलमेट नहीं हो सकता. यस. And because recently I am studying a bit more about religion and spirituality, I learned that
वी ऑल हैव सर्टन स्पिरिचुअल वेल्थ Yeah. जो कि हम अपने पिछले जन्म से कैरी करते हैं, एटलीस्ट वी बिलीव इन दिस थिंग, एंड उसका एक कार्मिक डेट होता है हमारे पास. Yes. ठीक है, जो बात हमारा सोल सोच के आई है कि हमें वो चीज़ करनी है, हाँ. अब वो तो उसे पता है, बट हमारी करंट ह्यूमन फॉर्म के अंदर वी हैव सर्टन एम्बिशंस, Yes. certain goals that we want this specific partner or this certain kind of partner, but that doesn't align with that spiritual wealth. Then what to do? It's a very deep question, and see, what we really need to understand is कि हम सब एक spiritual wealth की तरफ जा रहे हैं. कुछ wealth चाहिए, कुछ spiritually aligned भी होना चाहते हैं, और ये बहुत बार contradictory होता है कि soul कुछ और चाहती है और ह्यूमन कुछ और चाहता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जाता है. अब इसको हैंडल कैसे करें? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड बट कि हमें एक तो वो हीलिंग जर्नी समझ में आती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और अंदर से एक कॉल जरूर आता है, Right. एक कॉल जरूर आता है. बट हमें क्या समझना है कि जब हम किसी चीज को करने जा रहे हैं, उसका एक्चुअल गोल क्या है, उसकी कोर वैल्यू क्या है, उसका कोर पर्पस क्या है. इफ अ पर्पस इज हेल्पिंग पीपल ऑन अनदर ग्राउंड, देन आपकी वो स्पिरिचुअल वेल्थ बन सकती है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज की बात करते हैं, दैट आजकल लेट्स से बहुत आपकी सोल चाहती है साइलेंट जिंदगी, शांत काम लाइफ, लेकिन आपका ह्यूमन चाहता है स्टेज, स्पॉटलाइट, सक्सेस. नाउ इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी कि किसको फॉलो करें. तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आज की तारीख में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, या लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु है. अब स्पिरिचुअल गुरु ये कहता है कि उसका मन चाहता है स्पिरिचुअली इवॉल्व होना, दैट अवेकनिंग, दैट ट्रू सेल्फ, बीइंग ट्रू सेल्फ, एंड डिस्कनेक्ट विद डिटैच्ड फ्रॉम मटीरियलिस्टिक थिंग. ठीक है, ये अंदर की सोल चाहती है. बट एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या चाहता है? पीपल शुड नो मी, दे शुड लिसन माई वॉइस, मैं हर घर तक जाना चाहिए थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू यूट्यूब चैनल और एनीथिंग. ये आजकल के बहुत लोगों का कॉन्ट्रडिक्टरी होगा ना. बट यू नीड टू आस्क कि जो आपका सोल है वो कुछ कह रहा है, जो आपका ह्यूमन है वो कुछ कह रहा है, बट एज अ ह्यूमन जो आप करने चाह रहे हो, क्या वो आपकी सोल का इनडायरेक्टली पर्पस बन रहा है? क्या वो आपकी सोल को शांत कर रहा है, आपकी सोल के साथ अलाइन हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेज पे आते हो, आप स्पॉटलाइट पे आते हो, आप माइक के पीछे आते हो बीइंग अ स्पिरिचुअल गुरु, लेकिन आपकी वॉइस हर घर तक पहुंच के लोगों की जिंदगी बदल रही है, दैट्स कॉल्ड सेवा. पीपल आर चेंजिंग देयर लाइफ, उनके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, उनका करियर ठीक हो रहा है, उनके हॉरोस्कोप्स ठीक हो रहे हैं, है ना, उनका चार्ट चेंज हो रहा है, उनके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, देन व्हाई नॉट. तो आपको वो क्या समझना है और वो क्या अपने आप को अलाइन करना है कि जो आपकी सब कुछ घुमा के अगर कोर वैल्यू ह्यूमंस को सर्व करना है, यू वांट टू गो इन सर्विसिंग, आप सर्व करना चाहते हो ह्यूमैनिटी को, देन आपकी सोल को वो फुलफिल कर सकता है. आपको बस वो अलाइनमेंट में आना है. ये फिगर आउट कैसे करते हैं? यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ अ लॉट. ओके, अ लॉट, बिकॉज हम सेल्फ केयर करते हैं, हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं, हमें खुद से बात करना बहुत आनी चाहिए. यू कीप ऑन टॉकिंग योर सेल्फ, यू कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक टाइम आता है जब आपको समझ में आ जाता है कि ओके दिस दैट, मतलब मैंने कहा ना कि एक्चुअली क्या है, कोर वैल्यू क्या बोलती है आपकी सोल क्या बोलती है? आपकी सोल सेवा चाहती है, Right. आपकी सोल शांत रहना चाहती है, आपकी सोल पीस चाहती है. और अगर मेरा स्टेज, मेरी स्पॉटलाइट, मेरा पॉडकास्ट, मेरी लाइटिंग, स्टूडियो लाइट, एवरीथिंग इफ हेल्पिंग मी आउट टू रीच टू ह्यूमैनिटी एंड सर्विंग देम, देन इट्स एन अलाइनमेंट. नो, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अवेयरनेस जो है, ये अलाइनमेंट जो है, ये एक ही रिवर के दो साइड हैं. तो हमें वो पैरेलली ही चलना है, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय टाइमिंग. वो एक टाइम क्लिक होता है ना लाइफ में, तो वो एक टाइम ऐसा आता है, एक डिवाइन टाइम ऐसा आता है जब आप समझ जाते हो कि यस, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट. ज़रूरी नहीं है सेवा सिर्फ खाना बना के किसी को खाना खिलाना ही सेवा हो सकती है. सेवा के और भी पहलू हैं जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं, जो आपकी सोल को वो पीस देते हैं जो वो ढूंढ रही थी. जैसे आई वॉज ऑलवेज बी लाइक आई एम एन आर्टिस्ट बाय नेचर, एंड कॉलेज में आर्ट लिया, आर्ट पढ़ा, सब कुछ करा, एवरीथिंग आई हैव डन, बट ऑल द टाइम आई यूज्ड टू हैव इन माई माइंड कि क्यों हुआ है जन्म,
या मैं क्या सिर्फ पेंटिंग्स और एडवर्टाइजिंग और फिल्म, बिकॉज मैं आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, एंड देन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड अलॉन्ग विद दैट एनिमेशन, तो क्या मैं यही करती रह जाऊंगी? तो मैंने कार्टून फिल्में बनाई, कार्टून सीरियल्स में काम किया, एनिमेशन किया, मैंने बुक इलस्ट्रेट की, बच्चों की फिल्में बनाई, बच्चों की किताबें बनाई, मैंने बहुत काम किया, बट स्टिल आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या मैं इससे कितने लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ? तो बहुत टाइम मुझसे बोला गया दैट कम टू द कॉलेज, बिकम अ प्रोफेसर. आई बिकेम प्रोफेसर ऑल्सो, बट देन आई फाउंड आउट कि ये लिमिटेड है. नो, आई एम अ टीचर बाय बर्थ. आई हैव टीचिंग इन माई ब्लड बिकॉज माई फादर टीचर, माई मदर टीचर, माई होल खानदान इज टीचर. तो आई बिलोंग फ्रॉम अ टीचिंग फैमिली. तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव कि ये सिखाना है, ये दे के जाना है. जो मैंने सीख लिया लाइफ में उससे ज्यादा मुझे दे के जाना है. कहीं ना कहीं मेरी कोर वैल्यू ये हमेशा से रही, मेरे ब्लड में रही है, बिकॉज मैं इसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो देन आई वाज लाइक ओके, आई बिकेम प्रोफेसर, आई वाज वेरी हैप्पी. बट कुछ दिन जब मैंने क्लास ली, लेक्चर्स लिए, तो मैंने कहा ओके, बस यही 25 बच्चे हैं मेरे पास, और इन 25 बच्चों को मैं सिर्फ आर्ट सिखा सकती हूँ, नथिंग एल्स. सिलेबस है ना यहाँ का, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा सकती ना. राइट. बट मैं कुछ और करने के लिए पैदा हुई हूँ. आई एम नॉट बॉर्न फॉर दिस ओनली. आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट. मेरे एग्जीबिशंस लगते हैं, मैं काम करती हूँ, मेरे आर्ट वर्क्स को अवार्ड मिलता है, बट मैं सिर्फ ये नहीं कर सकती. कुछ और है लाइफ में जो बाकी है, कुछ और है. एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम, एंड पॉडकास्ट स्टार्टेड. और चैनल तो हम कब से कर रहे थे. चैनल वाज आल्सो सेम थिंग कि बुक्स पढ़नी है, लोगों तक पहुंचानी है. वाई? बिकॉज लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव टाइम. दे डोंट हैव टाइम. किसी के पिलो के नीचे है भी, बट कब शुरू करी कब खत्म करी पता ही नहीं. कहाँ से शुरू करी कहाँ खत्म करी बीच का याद ही नहीं है, क्योंकि इतना वक्त हो गया. वो एक बुक को खत्म करने में 1 महीना लगा कि उन्हें याद ही नहीं है. सो दैट वाज द कोर आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग द रीडर्स बुक्स क्लब चैनल, कि चलो ठीक है, हम तो पढ़ते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हम इसकी समरी बनाएंगे. वी विल नॉट रिव्यू द बुक, वी विल समराइज द बुक, एंड वी मेड इट. और हमेशा से हमें लगता था कि किताबें बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लॉयल हैं हमेशा आपके साथ, और आपको इतनी नॉलेज देती है, सब कुछ देती है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि किसी इंसान ने, जो ऑथर कहलाता है, राइटर कहलाता है, उसने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस निचोड़ के किताब में दे दिया. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो. पढ़ो तो सही. Ma'am, I think beyond shortcut as well, beyond shortcut, I think there is one very good thing about reading. I'm not a reader, but मैंने still जितनी थोड़ी बहुत reading करी है, I figured out this thing because चीज़ें monotonous, blank होती हैं. There are stories written. It gives a lot of creativity and a sense of imagination to the person who is reading because he's developing the story in his mind. अच्छा ऐसा हुआ होगा. Exactly, because books आपको टाइम ट्रैवल कराती है ना. Exactly. तो जब वो आपको टाइम ट्रैवल कराती हैं तो आप उस जोन, उस इमेजिनेशन में पहुंच जाते हो जहां वो आपको ले जाना चाहते हैं. That's how. That's very important. So I actually am very curious to ask you something. Yeah. What do you exactly feel when you upload your next video? I'm always excited. Always. Like कि What are you looking for exactly? नॉट व्यूज. मतलब व्यूज लाइक हाँ ठीक है, आ रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं. अच्छे चल रहे का मतलब मेरे को ये होता है कि मुझे वो आइडिया मिल जाता है, ओके दिस इज पीपल आर लाइकिंग इट, सो आई नीड टू क्रिएट मोर दिस. लाइक मैंने स्टोरी टेलिंग भी बनाया, रिलेशनशिप भी बनाया, ग्रैटिट्यूड भी बनाया, सबकॉन्शियस माइंड भी बनाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बनाया. देन आई मेड इट, सडनली आई मेड इट होपोनोपोनो फॉर प्रेगनेंसी. एंड दैट वाज लाइक कि ओके, बिकॉज देयर आर फीमेल्स हु आर स्ट्रगलिंग टू बिकम मदर, और उन्होंने दे आर लाइक सो हार्श विद देम, आइदर दे आर वेरी हार्श विद देम और द सोसाइटी वेरी हार्श विद देम कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम माँ नहीं बन पाओगी, इस एज के बाद तुम नहीं कर सकते. समटाइम्स दे हैव डाउट इन देयर माइंड कि आई कैन नॉट डू इट, क्या मैं माँ बन पाऊंगी, क्या मेरी बॉडी अलाउ करेगी, इतनी बार तो मिसकैरेज हो गया, इतनी बार ये हो गया, हो ही नहीं रहा, IVF फेल हो गया, ये फेल हो गया, मेरी बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब मुझे समझ, तो इतना सेल्फ डाउट होता है ना कि वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं माँ बनना. तो उसमें आई सडनली मेड अ वीडियो होपोनोपोनो प्रेयर फॉर प्रेगनेंसी, एंड दैट वाज लाइक तो आई थॉट ओके दिस इज, ये लोगों को अच्छा लग रहा है. सो मेरा जो थॉट होता है वो ये होता है कि लोगों को क्या अच्छा मिल रहा है, लोगों को कहाँ वैल्यू ऐड हो रही है. दैट्स इट. मेरी उस वीडियो से मतलब मैंने कहा ना, मैं बहुत फिगर्स, आई एम नॉट इनटू दैट दोज फिगर्स, बट अगर उस वीडियो को देख के मेरे को एक कमेंट भी आया कि मैम थैंक यू सो मच, आई एम कंसीविंग और आई हैव कंसीव्ड, या मैंने एक चाइल्ड को बर्थ दिया है, तो मेरे को लगता है मेरा सक्सेसफुल है वो.
आई एम सक्सेसफुल. And I mean, directly शायद ना impact कर रहा हो Ho'oponopono, Yes. but I think in that specific situation where you are in self-doubt, you are mentally not healed. Yes. It helps you calm down and remove that stressful scenario, and Yes. ताकि आप positive चीज़ों के बारे में सोच पाओ. Very And then they think that it is directly contributing to their pregnancy. Very right? true. Right? And do you think that healing is an ongoing process, or is there a point where we can realize that we are completely healed? Frankly speaking, healing is a journey, not a destination. Okay. So हम ये कभी नहीं कह सकते कि we are 100% healed. Reason, हम ये ज़रूर कह सकते हैं there are few areas in our life जिसमें हम एक टाइम के बाद heal कर जाते हैं. ठीक है, तो हम वो कर जाते हैं. But the thing is कि we are humans. Everything is happening समथिंग एल्स. हर दिन कुछ ट्रिगर करता है, Right. हर दिन कोई नई प्रॉब्लम, कोई नई सिचुएशन आती है, हर दिन कुछ नया आता है, तो अब हमें उससे भी डील करना है. सो Correct. बेसिकली इट्स अ लेयर्ड प्रोसेस. Right. तो जो हीलिंग है इट्स अ लेयर्ड प्रोसेस कि वो लेयर बाय लेयर है. आप एक लेयर हटाओगे तो 4 खड़ी है नीचे. आप फिर एक पे आप सेल्फ लव पे काम करोगे. लाइक आपको लगता है आपने सेल्फ लव नहीं किया कभी, आपको सेल्फ वर्थ के बारे में पता नहीं है, आपने अपनी जिंदगी झोंक दी दूसरों को प्लीज करने पे. नाउ यू आर लाइक अब आप सेल्फ वर्थ पे काम करना स्टार्ट किया है, अब आपको समझ में आ गया, यू आर ऑन द हीलिंग प्रोसेस. और एक टाइम के बाद पता चला कि सेल्फ लव वाली ठीक हो गई थी तो नीचे कुछ और खड़ी हुई है. सो इट्स अ लेयर्ड प्रोसेस. इट्स नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. आप लेयर बाय लेयर कुछ ना कुछ हमेशा हील कर रहे होते हो. बट येस, समझ में कैसे आता है कि कुछ चीज़ों को लेके कि आप हील कर चुके हो. व्हेन there's a point, there's a situation or there's a problem जो आपको ट्रिगर करती है लाइफ में. आपने उसने बहुत ट्रिगर किया है, बट अब जब आप वापस से वो सेम सिचुएशन, वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन आपके सामने आई, आपको हैंडल करने का नजरिया बदल चुका है, तो आप हील कर चुके हो. जो प्रॉब्लम, जो रिलेशनशिप खराब था, जिसने आपको ट्रिगर किया, जिसने आपको बिट्रेल किया, जिसने आपको जो कुछ भी किया, अब जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप पेन फील नहीं करते, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो आप हील हो चुके हो. राइट? उसके बारे में बात करके जब आप उस सिचुएशन, उस रिलेशनशिप, उस प्रॉब्लम के बारे में जब आप आज बात करते हो, तो आप बात करते हो एज अ विक्टर, नॉट एज अ विक्टिम. तो आप हील हो चुके हो. तो आप कुछ सिचुएशंस को लेके हील कर जाते हो, बट आप लाइफ में, मतलब आप ये बोलो कि मैं आई एम हील्ड पर्सन, ऐसा कभी नहीं होता. कुछ ना कुछ छोटा मोटा लाइफ में ट्रिगर होता रहता है. फिर आपकी जर्नी, इट्स अ ऑनगोइंग जर्नी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ये चलता रहता है. तो जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ, सो लेट्स से आई एम लाइक ओके, आई एम हील्ड इन दिस एरिया, आई एम हील्ड इन दिस एरिया, मैं इसमें भी ठीक हूँ, इसमें भी ठीक हूँ, इसमें भी ठीक हूँ. बट एज अ मदर आई एम एक्सप्लोरिंग एवरी डे न्यू थिंग. तो अगर मैं 4 चीज़ों में शांत रहती हूँ, तो कोई एक होता है जो फिर मुझे भी ट्रिगर करता है कि बस करो ये, आप बहुत टीवी देख लिया, दिस दैट, ये हो जाता है ना. मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग होता है. तो ना ओके, नाउ आई नीड टू वर्क ऑन दैट कि हाउ आई शुड हैंडल दिस सिचुएशन. या तो मैं उस टॉडलर पे चिल्ला लूँ कि टीवी बंद कर दो, आंखें खराब हो जाएंगी, हो जाएंगी, और मैं उसका माइंड डाइवर्ट करूँ. ओके, लेट्स प्ले अ ब्यूटीफुल गेम, बट उसके लिए टीवी बंद करना पड़ेगा. दैट्स थिंग. सो हीलिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि हर दिन कुछ ट्रिगर करता है लाइफ में, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया आता है. I was talking to someone day before yesterday, someone in the cab. So that specific person was telling me that the kind of path that I am on is very uncertain. Okay. It triggers a lot of anxiety in them. And this is what I told that person कि यार जिस path में मैं अभी हूँ ना, I have 2 options. Either I can be that person जहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि ये काम करना है, ये डेडलाइन है, ये जैसे मेरे स्कूल में होता था. Yes. इस पाथ के ऊपर मुझे मिलेगा रिग्रेट. करेक्ट. जिस पाथ पे मैं अभी हूँ, इस पाथ पे डेली अनसर्टेनिटी है, डेली कुछ नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, एंड एंजाइटी है. सो आई एम साइनिंग अप फॉर एंजाइटी and not regret, and I'm just evolving as a person, how I am able to handle those problems. Yes. And I'm just getting better at that. Yes. Situations यही रहेंगी. Situations यही रहेंगी. Very true. I mean, see, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब बहुत फीमेल्स मेरे पास आती हैं या रिलेशनशिप को लेके काउंसलिंग होती है, लोग आके बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, या पता है ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में आया, और मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, या मैं बता नहीं सकता कि इसने मुझे अंदर तक कितना झंझोड़ दिया. आई सेड आया ही इसलिए था बिकॉज ही ट्रस्टेड यू, यू कैन हैंडल इट.
टेक इट इन दैट वे नो कि आपके पास चैलेंजेस आ ही इसलिए रहे हैं कि आप उसे हैंडल कर सकते हो. Correct. आएंगे ही नहीं, क्योंकि सबके चैलेंजेस सेम नहीं होते ना. बिल्कुल. हर किसी इंसान के चैलेंजेस अलग है. तो मैं जो चैलेंजेस हैंडल कर सकती हूँ मेरे पास वो है, आप जो हैंडल कर सकते हो वो आपके पास है. सिंपल. और उस पर ट्रस्ट कौन रखे हुए है? वो यूनिवर्सल पावर जो हम नहीं समझ सकते. I think we have a problem of thinking that it is a matter of winning. It is never a matter of winning. It is how quickly you get over from those losses and those problems and how contained you are in those situations. Exactly. The same way which I have shared with you before कि वक्त का पहिया घूमेगा, ऊपर वाला नीचे आएगा तो ज्यादा खुश दुखी होने की जरूरत नहीं है. नीचे वाला जब ऊपर होगा तब भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहिया घूमता रहेगा. एंड मैम आई थिंक पहले तो बॉलीवुड हमारा नैरेटिव डिसाइड करता था कि व्हाट वी आर एक्चुअली फीलिंग और हाउ एग्जैक्टली शुड वी फील. अब जब रील्स आ गई है ना, तो अगर कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उसने 15 सेकंड में या 30 सेकंड में दिखा दिया कि मेरी जर्नी कैसी रही है. करेक्ट. हम जब एक्चुअली फिगर आउट करने वाली स्टेज के अंदर होते हैं या फिर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ, वी फील साला मेरी स्ट्रगल 5 साल की कैसे है. वेरी ट्रू. मेरी स्ट्रगल 10 साल की है, उसकी तो 30 सेकंड में निकल गई. बट लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि लेट्स से दिलजीत का एग्जांपल लेते हैं, है ना. बहुत लोग बोलते हैं रातों रात स्टार बन गया. रातों रात कोई स्टार नहीं बनता. उसके पीछे उसके 25 साल की, 15 साल की, 20 साल की जर्नी है. राइट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप किसी को स्टेज पे देखते हो और आपको ये लगता है कि ये रातों रात स्टार बन गया, आप उसकी रॉलेक्स देख रहे हो, आप उसका गुची बैग देख रहे हो, आप उसका डिफरेंट ब्रांड्स देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो. आप ये उसका स्ट्रगल नहीं देख रहे. आपने उसकी घिसी हुई चप्पलें नहीं देखी, आपने उसका रात का जागना नहीं देखा, आपने उसकी एंजाइटी नहीं देखी, आपने उसका भूखे पेट सोना नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा. आपने खाली उसको स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा हुआ देखा, लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रगल था, जो उसकी लाइफ की जर्नी थी, वो आपने नहीं देखी. लोग ये क्यों नहीं समझते? कितना आसान है ना कहना कि रातों रात स्टार बन गया. करेक्ट. बट वो रातों रात कोई स्टार नहीं बनता, कोई भी स्टार नहीं बनता. मैं वहाँ पे एग्जांपल दे रहे हो. मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ लाइक देयर आर बिग क्रिएटर्स. लाइक जैसा मैं इमेजिन करता हूँ यार, उनके पास अबव एंड बियॉन्ड है. एंड आई समटाइम्स फील कि हाउ गुड इट विल बी कि यार कि कैसा लगेगा ना कि मेरे पास भी वो सब चीज़ें होंगी एंड आई विल बी ऑल्सो इन दैट पोजिशन. बट आई जस्ट मेक पीस विद द फैक्ट कि are you that person who can handle everything? Correct. वो बी वाला जो पार्ट है. Yes. Am I that person जो ये सारी चीज़ें कर सकता है जो कि वो कर रहा है? लोग कहते हैं ना मुझे स्टेज पे खड़ा कर दो, आधे लोग इतनी ऑडियंस देख के लाते कांपते हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये कहना आसान है, ये कहना आसान है. जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने बोला कि आधी ऑडियंस तो ऐसी घबरा जाएगी क्योंकि उन्हें सिर्फ बोलना आता है. right. तो there's a very beautiful story I have just read कुछ few days back, और मैंने शायद कहीं तो शेयर की थी कि एक बच्चा है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, बहुत प्यारी पेंटिंग बनाता है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है, और उसमें सारे कलर्स डालता है, बड़ा अच्छा सा, वो बहुत अच्छा सा कैनवस पेंट करता है. और जब वो कैनवस पेंट करता है तो वो कैनवस पेंट करने के बाद वो उसे एक चौराहे पे खड़ा करके जाता है. चौराहे पे खड़ा करने के बाद वो उसमें नीचे एक नोट लिखता है कि आपको इस पेंटिंग में जहाँ भी कमी दिखे वहां पे एक ब्लैक पॉइंट लगा देना, और एक मार्कर रख के चला जाता है. जब वापस आता है अगले दिन चौराहे पे अपनी पेंटिंग को देखने, तो देखता है जो उसने एक्चुअली इतना प्यारा पेंटिंग बनाया था वो पूरी काली हो चुकी है. सबने उस पर ब्लैक मार्क की यहाँ करेक्शन की जरूरत है, यहाँ लाइटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी, यहाँ कलर दूसरा आ सकता था, ये और डार्क हो सकता था, ये और लाइट हो सकता था. कहने का मतलब है पूरी पेंटिंग खराब करके चले गए. वो घर वापस आता है, अपने गुरु से मिलता है जिसने उनको आर्ट सिखाई होती है, और वो बोलता है कि मैंने ऐसे पेंटिंग बनाई एंड जस्ट टेकिंग अ रिव्यू कि लोग इसके बारे में कैसा सोचते हैं. मैंने ऐसा एक नोट लिखा और उसको चौराहे पे रखा, लेकिन मेरी अगले दिन तो पूरी पेंटिंग काली, मतलब उस पर इतने डॉट्स लगे हुए. तो गुरु ये समझाता है कि आज वापस से पेंटिंग बनाओ, कल वापस से चौराहे पे रखना, और नीचे पेंसिल रखना और नोट लिखना कि जहां भी कमी है उसे करेक्ट करके जाना प्लीज. वो सेम करता है, वो वापस अपना कैनवस नया बनाता है, चौराहे पे रखता है, नीचे पेंसिल रखता है और इरेजर रखता है, और एक नोट लिखता है कि जहां भी आपको कमी दिखे इसको आप प्लीज करेक्ट करके जाना. जब अगले दिन आता है तो आप उसको पेंटिंग वैसी की वैसी मिलती है. तो इट्स नॉट कि वो करेक्शन करना वो सबके बस का नहीं है. राइट. वो बोलना बहुत आसान है. जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, या टेस्ट मैच चल रहा होता है, या मैच चल रहा होता है, या आईपीएल चल रहा होता है, तो आपने देखा होगा चाय की टपरियां होती है ना, नुक्कड़ पे लोग चाय पी के बातें कर रहे होते हैं उसकी, या बहुत सारे ऐसे अब दुकानें खुल गई हैं जहां से आपको स्क्रीन दिखती है. वो स्क्रीन उस दुकान वाले की नहीं है,
चाय की टपरी वाले के लिए नहीं, लेकिन वो किसी की स्क्रीन बड़ी बड़ी आजकल लगती है तो वो आपको दिखती है। मैच चल रहा है, लोग चाय पी रहे हैं, 10 रुपए की चाय पी रहे हैं टपरी पे, चाय पी के लिए अरे गलत खेला, ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। ये बहुत आसान है कहना, राइट। वो जो पिच तक पहुंच गया ना, जिसने वो हाथ में बल्ला पकड़ा है और जिसने हाथ में वो बॉल पकड़ी है, यू रियली नीड बॉल्स And I really reach that level. And I really feel connecting back to the relationship thing. Yes. आप अपने रिलेशनशिप में जितनी तीसरे बंदे की एडवाइस लोगे या देख के सड़ोगे, आप नुकसान ही करवाओगे हमेशा। It's very important to understand, especially in today's relationship. When I got married with Amit, we had this, आप इसको रूल कह लो, गारंटी कह लो, पेपर कह लो, हमने साइन करा है, जो मर्जी आप कह लो, कि whenever we'll fight, you promise me, I promise you, तीसरा बंदा कभी नहीं आएगा। द रीजन, जो तीसरा आएगा वो हमेशा बायस्ड होगा। अगर वो मेरी फैमिली से हुआ, मेरे रिलेटिव्स हुए तो वो मेरी साइड लेंगे, आपके रिलेटिव्स हुए तो आपकी साइड लेंगे, आपके दोस्त हुए तो आपकी साइड लेंगे, मेरे दोस्त हुए तो मेरे साइड लेंगे। कोई ऐसा जेन्युइन नहीं मिलेगा जो हम दोनों को ये बैठ के समझाएगा कि ओके दोनों की गलती है, दोनों सॉरी बोलो, दोनों आगे बढ़ो। तो हम कोशिश करेंगे, मतलब लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया कि हमें थेरेपी की जरूरत पड़ी तो वो एक अलग चीज़ है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ी वो एक अलग चीज़ है, बट वी आर प्रॉमिसिंग टू ईच अदर कि हमारे उसमें थर्ड पर्सन कभी नहीं आएगा। एंड टिल टुडे दिस इज वी आर ऑन आवर प्रॉमिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कॉल लगता है हमें अपने घर करने में कि सुनो इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, एंड समटाइम्स हम ये नहीं समझ रहे उसके ड्रॉबैक्स इतने ज्यादा होते हैं ना, इतना ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप रात को जब हस्बैंड वाइफ साथ में सो जाते हो और अगले दिन उठते हो, अपने काम पे चले जाते हो और सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, लेकिन आपके पेरेंट्स के दिमाग में वही रह गया जो आपने उस इंसान के बारे में पर्सपेक्टिव दिया था। आपने जब अपने पेरेंट्स को कॉल किया या भाई को कॉल किया, दोस्त को कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो आपके दोस्त ने या तो आपको ये समझाया कि देखिए सबके साथ लाइफ में होता है, करेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, या उस बंदे ने बोला पैक कर और घर आ जा, मैं हूं ना, या माँ बाप ने ये बोला कि सामान पैक कर हम लेने आ रहे हैं। सो वो थर्ड पर्सपेक्टिव कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो बायस नहीं है, जो कि बहुत कम होगा, वो एक काउंसलर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, जो आपको वो सेफ स्पेस भी देगा, जो आपको जज भी नहीं करेगा और जो आपको नॉन बायस सलाह देगा। लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त अगर आपके रिलेशनशिप में घुसे एज अ थर्ड पर्सन, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, किसी तीसरे को मत घुसने दो अपने रिलेशनशिप में। ये बिल्कुल सही चीज इसलिए भी है, देयर इज नो चांस that the third person is aware about each and every situation that is going on between you and your partner. Very true. उन्हें लेयर का पता है, exactly, ऊपर का पता है, या सिर्फ उस सिचुएशन का पता है, उनको वो बात का पता है, not the things that led up to it. Exactly. Very true. How was your experience of the podcast? Amazing. मतलब I am feeling very good. Your energy, your vibrations is amazing, and your questions are superb. I mean, I've shared with you कि I'm going on many podcasts and I'm repeatedly getting the same questions. लोग बात कर रहे हैं, but जिस पर्सपेक्टिव से आज हमने बात करी है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को रख के आपने सवाल करे हैं, it's amazing. Thank you so much. Ma'am, thank you so much for coming. Ma'am, any advice you have for me? Any suggestions? I am no one to give suggestions to anyone. Okay, कोई advice नहीं, कोई suggestion नहीं. You are just doing amazing work. Keep up the good work and just keep your spirit high. You're doing a good job. तो बस करते रहो, सीखते रहो, करते रहो. Thank you so much, ma'am. This means a lot, and I'm really grateful that you came here and I had this open conversation with someone who is not from my generation, and I could still ask those questions which are not even from my generation, yes, which are like मेरे से भी younger generation के questions हैं, and I hope जो भी ये podcast देख रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा. and please मैम का content देखो, वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, एंड कमेंट डाउन whatever you felt watching this video, एंड सब्सक्राइब कर लेना यार. दैट्स इट. एंड मैम लास्ट में मैं सभी से यही कहता हूँ दैट कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.